Okay. We just have 54 people in the session. I'm hoping more people would join in as we move into the session. Okay. Okay. You have a question from the previous lecture. Ji Harissa. Shoot. Let's break the ice today with Mr. Haris Hayat's question. Sir Wilson said bureaucracy should be segregated from politics. But if bureaucracy are to tutor politicians, how will they remain apolitical? Good question. The idea was to sort of block political interference in the matters of the bureaucracy. So I would not say that he wanted bureaucratic sort of interference in politics, but he did not deny this idea. So basically, he was talking about something like not bureaucrats. So don't take it like very, very literally that bureaucrats and politicians would sit into training rooms where bureaucrats would train the politicians or tutor the politicians. The idea was that policy making be left to the bureaucrats themselves. And ultimately, through that process, when the bureaucrats would make policies, the people who are politicians, who would, of course, belong to a very, very different body, जो दो different bodies propose की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि even legislation would not be done by the politicians, would be done by the not exactly legislation, but one of the ideas was that legislation would be done by the bureaucrats. But the main idea here was not that they would tutor them directly, was the fact that if policies would be made and implemented by the bureaucrats, that would raise that sort of collective standards of policy making in the society. I think that's the best way I should put it. And in that way, pretty much the job of the political class would just be to raise the issues from the ground level, because the political class is connected to the grassroots. And by virtue of that, they have access to evidence and they have access to information that the bureaucracies does not. But as far as legislation is concerned and policy making is concerned and decision making is concerned, the bureaucracy is in a much better position because it comprises of people who are trained, it comprises of people who are educated, and so on and so forth. So, and then of course it comprises of people who would stay there for the longer term, right? So on all those counts, the bureaucracy would be making policies which would raise the collective standards, and in that way, in an indirect manner, the political class would also become, over a period of time, trained to understand and develop those policies themselves as well, right? So that would educate the entire society about, how policies and laws should be made and so on and so forth. So don't take it as an idea where, the bureaucracy would interfere in the matters of how politicians do things, or bureaucracy would train the politicians or tutor the politicians directly. So it's not as simple as that. It's a complex idea, and how this will happen is quite unclear, which is why, of course, Wilson's ideas were not seriously taken even in the American society, even though that part where how Montesquieu, the great philosopher, was the first person to talk about separation of powers, and then the American Constitution was built on the idea of separation of powers. And then wherever the American Constitution went,
For instance, think about Pakistan's constitution. It's a federalist constitution, just like the American constitution. Pakistan also talks about separation of powers between the three branches of the state, the executive and um, uh, by the way, a very, very good discussion on separation of powers is the fact that there is no explicit mention of the separation of powers in the Pakistani constitution. I don't know if the same is the case with the American constitution, but there is that implicit separation of powers in the constitution because the constitution clearly demarcates and delineates the different powers that each of these three branches of the state would have. So in that sense, when it sort of separates the powers that all these three branches of the state would have, it sort of institutionalizes and vests powers within these three branches or three pillars of the state. So in that sense, there is that separation of power. So when Montesquieu first talked about separation of powers, and then the American Constitution imbibed that, then the same, of course, was taken to the rest of the world wherever the American Constitution went. The idea of an apolitical bureaucracy and the idea of the executive separated from the interference of the politicians was already there. Even much before Wilson advocated these ideas, right? But of course, the modality of how that interference would be blocked by the bureaucracy or by the executive is, of course, debatable. And then in countries like Pakistan, where you have members of the legislature heading executive institutions, people who are called ministers are members of the legislature and who are heading these institutions of the executive, जिनको हम ministries वगैरह बोल रहे हैं, and then they are, of course, performing administrative functions along with, of course, legislative functions, which is different from what's happening in the US, what happens in the US rather. There is a question of how apolitical can the bureaucracy be? And this is a philosophical question, but it's a very valid question given Pakistan's governance structure. In our governance structure, I think that apolitical bureaucracy is a very sort of difficult objective to accomplish, given that there is, within the law, there is a very, very strong role carved out for the legislature to perform in the administrative functions of the state, right? And by administrative functions, I mean, of course, how these institutions of the executive operate and what services they deliver. So there is a very, very strong role that the legislature plays. So in that sense, that there is not a very, very clear separation of powers. And then, of course, Article 184, sub-article 3 of the Constitution of Pakistan, जो हमारी सुओ मोटो केसेस के बारे में बात करता है, तो अगर आप उसका भी मुतालिया कीजिए तो आपको समझ आएगी कि बहुत ज्यादा जो हमारी अदलिया है वो कैसे एक अदालती जायजा ले सकती है, जुडिशियल रिव्यू जिसको हम अदालती जायजा बोलते हैं, एक वो ले सकती है हमारे किसी भी एग्जीक्यूटिव के फैसले का. तो वो भी एक बहुत ही अहम बात है कि आप उसको भी देखिए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए उसका हाउ डज दैट बोर्ड फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स. So, of course, it doesn't bode really well for separation of powers, but उसको भी देखना जरूरी है कि जुडिशरी की जो इंटरफेरेंस है इन द मैटर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड मैटर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि अब जब आप गवर्नेंस इश्यूज की पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, तो उसमें सेपरेशन ऑफ नॉट हैविंग अ वेरी क्लियर डिमार्केशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए पावर्स सेपरेट हों भी, लेकिन अगर उनकी डिमार्केशन क्लियर नहीं है कि ये डोमेन जुडिशरी की है या एग्जीक्यूटिव की है या लेजिस्लेचर की है, और जहां पे दिस ये जो इस तरह की बहुत ज्यादा ये जो दिस थिन लाइन बिटवीन
work or what responsibility or what power is of what branch of the government. Wherever that line is kind of that line becomes hazy, तो वहां उन ममालिक के अंदर गवर्नेंस इश्यूज जरूर होते हैं अगर क्लैरिटी के साथ आपको नहीं पता कि कौन सा काम किसका है. और सैडली द वे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, since they tried to create those multiple checks and balances, जो कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, multiple checks and balances of one institution over another, which or one branch of the government over another, is a judicial review, judiciary का check है over the executive. But in Pakistan's case, you know, one thing which is very, very different from the American Constitution is that there is absolutely no check within the Constitution of the executive over the other two institutions. The executive cannot check the work of the legislature or the judiciary. Whereas the other two, the legislature through its lawmaking function and through some of its members heading executive, the top executive institutions, the legislature does have a check on the executive. Through judicial reviews and suo motos and so on and so forth, the judiciary also has a check on the executive. But the executive, on the flip side, does not have, unfortunately, any checks within this system over the judiciary or the legislature. And this is one of the biggest governance problems, right? But having said all of that, there is, of course, no clear demarcation of powers in Pakistan. And then, of course, even if there is, institutions also tend to transgress. And that transgression of your domain and transgression of your powers is also a big problem, which is causing this institutional imbalance. Some institutions have become more powerful. The other institutions have, for that matter, not. But regardless of that, regardless of this institutional imbalance, of course, the fact remains that whether Pakistan's executive or bureaucracy is apolitical or not. When I would address that question of whether Pakistan's bureaucracy is apolitical or not, I think one very, very important thing that one needs to consider is the fact that whether there is political interference beyond what the Constitution permits. And this is an important question. Again, I would want you to explore this further. That whether, since Haris साहब ने एक philosophical question पूछा और एक theoretical question भी है in one sense or another, so I'm giving a very elaborate answer. So to think about this, one would like to consider whether there is political interference in the matters of the bureaucracy or in the matters of course, the executive, how the executive functions. Is there political interference beyond what the Constitution permits? Because there is some, like I tried to prove, that there is some inherent interference of the politicians or of the legislature in the matters of the bureaucracy, which is inherent within the Constitution of Pakistan. So, taking that as a given, one must, to see if there is political interference in Pakistan, one must look at whether there is political interference beyond what the Constitution permits, right? And you would find many evidences, of course, looking at Pakistan's politics and how it has shaped up in the last 70 years. You would find many instances of how the bureaucratic process or how policies have been designed and implemented in Pakistan have done so to favor certain groups or be malignant towards certain other groups, right? And whether those groups are political groups, some ethnic groups, religious groups, and then how policies are sort of held hostage to the making of policies, and of course the implementation of policies are held hostage to the interests of certain institutions and groups and so on and so forth. And that has, of course, reflected quite poorly on the performance of policies and on the performance of institutions themselves. And thereby one sees these governance dysfunctions in Pakistan. And of course, this is a continuing debate and we can surely talk about this. So I hope, Harisa, that answers your question.
what is the most appropriate model of bureaucracy? That appropriate model, I don't know what is bureaucracy. First of all, is, like I said, is a model itself. So you could not say what is the appropriate model of bureaucracy. I think you're trying to ask what is the appropriate way that the civil service should be structured in Pakistan. And today's lecture, by the way, is going to be about civil service reform. So we would have this discussion in quite a lot of detail. So the first part of the lecture, like I said, is about multi-level governance. So trying to understand Pakistan's governance structure. And the second part of the lecture would be about civil service reform. So we would, for the most part, revolve around the NCGR and the current proposals for reform, which most of you would know what they are, but we just try to do a small discussion on that. Yeah, you could kind of say that bureaucrats would make policies and pose adjustments to the kind of, yes, kind of. Okay, let's begin. To understand Wilson better, अभी मैंने आप लोगों को विल्सन और ये पढ़ा दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ब्यूरोक्रेसी का टॉपिक करा दिया था मैंने. ब्यूरोक्रेसी का टॉपिक करा दिया था, तो उसमें देखिए ना, जस्ट गो बैक टू योर नोट्स, और मैंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है उसके अंदर कि विल्सन ने एग्जैक्टली क्या कहा था और वेबर ने क्या कहा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप में से कोई जिसने नोट्स अपने टाइप किए हैं वो यहाँ जरा चैट में शेयर करे अभी, ताकि सबको नोट्स मिल जाएं. Okay, let's begin with Pakistan's governance structure. What is Pakistan's governance structure? Now, there's a small difference between the political system and your governance system, or the structure of your governance. To understand this in a better way, I'll just give you an example. Whether you're a democracy or a dictatorship or some sort of autocracy or a military dictatorship or a military-led democracy, whether you're a democracy or an authoritarian regime, whether you have a totalitarian regime, like, I mean, I could come up with many examples. Whether you're a plutocracy, right, or whether you're a technocracy where technocrats rule. Like, I mean, there's many examples, and people who are students of, you don't need to know what they are. Like, students of political science would know what each of these mean. तो आप लोगों को उस तफसील में मुझे नहीं लगता जाने की बिल्कुल भी जरूरत है. अहम बात यह है कि आप समझें that all of these are competing political systems, right? And of course, जिस तरह अभी किसी ने सवाल पूछा कि सर पाकिस्तान के लिए बेस्ट मॉडल कौन सा है, ममालिक के लिए इनमें से ज्यादा अच्छे सियासी सिस्टम्स कौन से हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स कौन से हैं, वो हर मुल्क के सर्कमस्टांसेस को सूट करके ये डिस्कशन की जा सकती है. Democracy could be good for Pakistan, but maybe not for India or not for Bangladesh, because
these political systems have to adapt to certain political realities, certain ground realities. What is the level of finances? What is the level of finances that you have? What is the state of development in your country? So whether you're a developed country or an underdeveloped country, how many educated people you have? So what are the literacy rates? And so on and so forth. What political system suits you is a matter, the best way I could say this is that what political system suits you is a function of your country characteristics. And by country characteristics, I mean a lot of characteristics. जो मैंने अभी जिनमें से कुछ की मिसालें दी कि आपका लिटरेसी रेट क्या है, आपका माजी में आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या रहे, जो वर्क किए, व्हाट डिड नॉट, आपके फाइनेंशियल सिस्टम्स क्या हैं, यानी पैसा कितना है आपका, आप टैक्सेस कितने रेज करते हो, सो ऑन सो फोर्थ. तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मुल्क को क्या पॉलिटिकल सिस्टम सूट करेगा. पाकिस्तान को शायद लोग बहुत ज्यादा आजकल बात करते हैं कि हमें तो जी बस डंडा सूट करता है, तो डिक्टेटरशिप इज बेस्ट फॉर अस. एन ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन रिजीम, जो हमारे बाजी में अथॉरिटेटिव जो डिक्टेटर्स थे, मिलिट्री डिक्टेटर्स, उन्होंने अथॉरिटेटिव रिजीम सेट की, ऑटोक्रेसीज सेट की. ऑटोक्रेसी वो होती है जिसमें एक ऑटोक्रेट ऊपर होता है एंड ही मेक्स ऑल द डिसीजंस. डेमोक्रेसी वो है रूल. डेमो मीन्स रूल पीपल, क्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल इज अ डेमोक्रेसी. यहाँ पे सब लोगों की राय से फैसले लिए जाते हैं. सब लोगों की राय, उनमें से एक फैसला है कि हुकूमत कैसे कायम होगी या किसकी हुकूमत कायम होगी. ये फैसला कि किसकी हुकूमत कायम होगी, जिसको हम इलेक्टोरल प्रोसेस कहते हैं, किसकी हुकूमत कायम होगी, ये भी फैसला कंसेंसस के साथ लिया जाता है. मजमूई राय हमवार की जाती है और उस राय के तहत फैसले किए जाते हैं कि हुकूमत किसकी होनी चाहिए. Because it is the rule of the people, by the people, for the people. Right? So anyways, ये हमें इतना डिटेल में डेमोक्रेसी को चलें समझ ले, पर क्योंकि हम बार बार डेमोक्रेटिक रूल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, लेकिन बाकी कंपीटिंग सिस्टम्स आपको समझने की जरूरत नहीं. ये है पॉलिटिकल सिस्टम्स. पॉलिटिकल सिस्टम के साथ एक चीज है गवर्नेंस सिस्टम, ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर. अब वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू प्लान टू डेवलप. अब उसकी मैं मिसाल देता हूं. आपका स्ट्रक्चर फेडरलिस्ट भी हो सकता है और आपका स्ट्रक्चर यूनिटरी भी हो सकता है. ये दो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं. फेडरलिस्ट वो स्ट्रक्चर है, और मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए पहली दफा ही गौर से सुनिए. फेडरलिस्ट वो स्ट्रक्चर है जिसमें एक फेडरेशन होती है और उस फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं. यूनिट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द फेडरेशन, जिनको हम फेडरेटिंग यूनिट्स भी बोलते हैं. जैसे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है, जो आपकी फेडरेशन है या आपकी स्टेट है एट द फेडरल लेवल, उसके फिर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, यूनिट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द फेडरेशन. अब हमारे पहले बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या हैं? हमारे सूबे, हमारे प्रोविंसेस. उनके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स फर्दर क्या हैं? हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स या हमारी लोकल गवर्नमेंट्स. राइट? लोकल गवर्नमेंट्स के नीचे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या हैं? ये पूरा मैं आपको गवर्नेंस का ढांचा यानी उसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूं. लोकल गवर्नमेंट्स के नीचे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या हैं? तहसील. तहसील के नीचे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या हैं? यूनियन काउंसिल्स. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई नया रिफॉर्म आया, तो पाकिस्तान की आज तक जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं वो नॉमेनक्लेचरल रिफॉर्म्स थे. इन्होंने सिर्फ नामों के चेंजेस किए.
कहीं पे इसका नाम तहसील गवर्नमेंट कर दिया, कभी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, कभी इसको टाउन कहना शुरू कर दिया तहसील की जगह, कभी टाउन की जगह उसको हमने तहसील काउंसिल टीसी कहना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान में जो लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स आए हैं, मैं सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जो सबसे स्मॉलेस्ट टीयर है, उसके वेरियस रिफॉर्म्स पाकिस्तान में आए। 1959 में आया, फिर 1969 में आए, फिर 1979 में आए, फिर 1979 के बाद फिर 2001 में आए। और ये जितने रिफॉर्म्स आए, ये चारों पांचों मेजर सेट्स ऑफ रिफॉर्म्स दैट हैपेंड, ये सारे रिफॉर्म्स आप गौर करेंगे मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के टाइम पर आए, लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स। उसकी एक बुनियादी वजह यह है, और ये गौर से सुनिएगा, कि जब भी मिलिट्री डिक्टेटर्स या अथॉरिटेरियन रिजीम सेटअप होती हैं, तो दे सेट अप बाय ओवरथ्रोइंग अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, राइट? इसी तरह ही सेटअप होती है ना, that they overthrow a mainstream political party। मैं उसके merits या whether that is justified or not उसकी तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल बहस नहीं कर रहे, दिस इज अ पॉलिसी क्लास। अब जब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ओवरथ्रो करती है मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स, तो उनकी ये मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उन्हें किसी ना किसी लेवल्स पे पॉलिटिकल ओनरशिप रिक्वायर्ड होती है, because somebody has to take political ownership of the policies or the plans or the strategies created by the military governments, and they want political ownership to the lowest level, जो कि local governments है। तो उसमें वो हमेशा ये करते हैं that they try to have to facilitate that political ownership for themselves, they try to create that alternate political leadership, especially at the lowest level। फिर lowest level पे वो बात इसलिए भी आसान होती है, because at the lowest level the leaders who compete for the electoral college at the lowest level, वो leaders कोई established political leaders नहीं होते। तो it is always easy for military dictators to launch their political careers and to buy their loyalties out, because they are not established as political leaders on the political landscape। इसलिए मिलिट्री हमेशा क्या करती है कि पहले साल के अंदर ही पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाती है, और लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाती है, और लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के थ्रू वो पॉलिटिकल ओनरशिप क्रिएट करने की कोशिश करती है एट द लोएस्ट लेवल, because that sort of advances their political rule, and that establishes the military, that grounds the military at the lowest level। इसको उर्दू जुबान में कहते हैं ना कि मिलिट्री अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, मिलिट्री रूल को तौसी मिलती है इन लोगों के थ्रू। मिलिट्री रूल इज रैटिफाइड through the political ownership that they get by buying out the loyalties of the leaders at the local level। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। तो इसलिए मिलिट्रीज जब आती है ना, वो लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स के नाम पर बेसिकली फैसिलिटेट करना शुरू कर देती हैं लोकल गवर्नमेंट्स को। दूसरी बात, इस पर दूसरी अहम बात, एक तो मिलिट्री अथॉरिटेरियन रिजीम्स अपने पैर पे खड़ी होती हैं, दूसरी अहम बात यह है कि ऑफ कोर्स दे हैव टू रूल एंड दे हैव टू फॉस्टर डेवलपमेंट। अब फॉर इंस्टेंस नालियां बनाने के प्रोजेक्ट्स, सड़कें बनाने के प्रोजेक्ट्स, sanitation projects, health projects, education projects have to be implemented by someone। So military looks at two institutions to do that, the local political executive, अब मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। यहां मैं पॉलिटिशियन नहीं कह रहा, because these people are performing executive functions, but they are elected people, they are not part of the executive otherwise, right? So one is the local political executive, and the other is the non-elected members of the executive, like the bureaucracy at the local level। तो मिलिट्री के हमेशा अदवार के अंदर ब्यूरोक्रेसी भी स्ट्रांग होती है, बिकॉज
since they've overthrown a mainstream political party, they only rule through the bureaucracy. तो जितने civilian functions हैं, civilian administrative functions, they rely on the bureaucracy to do them, and they rely on the bureaucracy to perform their development functions. ठीक, अच्छा, दूसरी है local political, और उसके थ्रू भी वो कर लेते हैं. अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज बचती है, वो है लेजिस्लेटिव फंक्शंस, जो कि आपका नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट और सेनेट का रोल है. So in the early days of military bureaucracies, what they do is that they rule through the martial law ordinance, जो प्रेसिडेंट खुद साइन करके ऑर्डिनेंस निकाल दे, और पूरा मुल्क उस कॉन्स्टिट्यूशन इज हेल्ड इन अबेयंस, कॉन्स्टिट्यूशन गिरा दिया जाता है और मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस के तहत मुल्क को चलाया जाता है. वही मुल्क का सुप्रीम लॉ बन जाता है उन दिनों. और फिर उसके कुछ अरसे बाद जब उनको ये जरूरत महसूस होती है कि मुल्क में नई कानून साजी करनी है, मोर लॉज हैव टू बी मेड, तो फिर हमेशा मिलिट्री रूलर्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन तब तक उनको आए हुए 3-4 साल हो चुके होते हैं. वो कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्रैक्स क्रिएट करके उनके लोगों को तोड़ लेते हैं, और एक नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट एक शैम इलेक्शंस करवा के कुछ लोगों को वहां पे भी बिठा देते हैं कि वो कवानीन भी बना सके. दिस इज हाउ मिलिट्री हैज रूल्ड. यू लुक एट ऑल द एक्सपीरियंसेस. अब इसमें मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूँ. पाकिस्तान में पहला लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म जो आया उसको हम कहते हैं बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डिनेंस, BDO, जिसमें पूरे पाकिस्तान में जब 2 यूनिट्स बने थे, जो 1 यूनिट स्कीम जिसको हम कहते हैं, एक ईस्ट अलग 1 यूनिट था, वो 1 यूनिट अलग था, वेस्ट पाकिस्तान. तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ऊपर सिर्फ दोनों यूनिट्स के गवर्नर्स होंगे और गवर्नर्स के नीचे डायरेक्टली, जिस तरह अमेरिकन सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट्स होंगे. दिस वाज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आपने 1 यूनिट्स बना दिए थे और उनके नीचे आपकी लोकल गवर्नमेंट्स थी. ठीक है, उन लोकल गवर्नमेंट्स को हम कहते थे बेसिक डेमोक्रेसीज, BDs. और जो लोग उनको रन करते थे, उनको जिस तरह आप आजकल नाजिम या काउंसलर या चेयरमैन होते हैं, उनको जो रन करते थे उनको हम बोलते थे BD मेंबर्स. और जो रिफॉर्म आया था उसका नाम था बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डिनेंस. व्हाई वाज इट एन ऑर्डिनेंस? बिकॉज इट केम डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेसिडेंट. तो BD मेंबर्स इलेक्ट हो गए. और ये कब हुआ? 1959 में. अब जरा साल गौर कीजिएगा. 1958 में अयूब खान ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा और मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ. और 1969 में दूसरा पाकिस्तान का सिविल सर्विस रिफॉर्म हुआ अयाया खान के फौरन आने के बाद. 78 में जियाउल हक आए, 79 में तीसरा हुआ, और 99 के बिल्कुल एंड पे अक्टूबर में परवेज मुशर्रफ आए, और 2001 में सवा साल बाद पाकिस्तान का चौथा लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म, जिसको लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 बोलते हैं, वो चौथा 2001 में आया. अच्छा, इन सब ने पाकिस्तान में, इन चारों ऑर्डिनेंसेस ने अपनी अपनी तर्ज से हमारी लोकल गवर्नमेंट को रिफॉर्म किया. और जब लोकल गवर्नमेंट, लेकिन आज तक पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स के पास ना कैपेसिटी है, तो उनके कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स अलग से हैं, ना लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन हुई. और 18th अमेंडमेंट के बाद जब डेवोल्यूशन हुई ऑफ बोथ फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स, जब फेडरल ने पावर सूबों को ट्रांसफर कर दी और सूबों ने आगे पावर्स लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर की, तो वहां से ये जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स थे, कैपेसिटी डेफिसिट्स थे लोकल गवर्नमेंट्स के पास, वो वहां से दे केम इनटू द ओपन, एक्सपोज हो गई लोकल गवर्नमेंट्स. अच्छा, इन चारों रिफॉर्म्स के अंदर वेरियस किस्म के फाइनेंशियल पैकेजेस अनाउंस होते थे लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, हु वुड रिपोर्ट टू हु. और बेसिकली आप समझ इस बात को लें कि चारों जो लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स थे बारी बारी, 59, 69, 79, 2001, इन चारों में हमने एक चीज की, वो ये था कि हर गवर्नमेंट ने आके, मिलिट्री गवर्नमेंट ने आके, दे ट्राइड टू ऑल्टर दैट रिलेशनशिप बिटवीन द लोकल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द ब्यूरोक्रेसी. जैसे इसकी अहम मिसाल ये है कि जो फिफ्थ, और फिर ऑफ कोर्स उसमें
हर लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म ने ये बताने की कोशिश की कि लोकल गवर्नमेंट्स काम क्या करेंगी और उनको पैसा कितना मिलेगा उस काम को करने के लिए। 59 पे जब बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डिनेंस आया तो वो भी नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्ट हुए लोग, पार्टी बेसिस पे नहीं हुए लोकल गवर्नमेंट्स में। और उस वक्त काफी हद तक जो बीडी मेंबर्स थे, they were subservient to the bureaucracy because in the bureaucracy of the 50s was very, very strong. And Ayub Khan also relied quite enormously on the bureaucracy. Bhutto era mein ye hua that the bureaucracy was severely sidelined by Zulfikar Ali Bhutto because the jialas of the PPP at the local level, which was the PPP's own local political executive, began to rule, which caused, of course, huge development problems because those people were neither elected nor intellectually equipped to design policies and make plans. They were normal party workers. But since Bhutto's was a very populist political regime, it relied on its jalas to do that. Right? Ziaul Haq came, the 79's ordinance again was promulgated, and then उसके फौरन बाद फिर लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आए और दोबारा रीइंस्टीट्यूट हो गया द रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। याद रखिए इस दोनों के दरमियान भुट्टो दौर में 1973 का सिविल सर्वेंट्स एक्ट आ चुका था और सिविल सर्वेंट्स एक्ट के थ्रू ये जो हमारे इस वक्त 12 सर्विस ग्रुप्स और 12 कैडर्स बने हैं, ये उसके थ्रू बने थे। कॉमन सिस्टम भी उसके थ्रू आया था और ये सब किया गया था विद अ व्यू टू कंटेन द पावर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो भुट्टो एरा में ब्यूरोक्रेसी वाज सेवियरली साइडलाइंड। देन केम 1979 और बिल्कुल वैसे जैसे 1959 का बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर था, उसी तरह 1979 में दूसरे रिफॉर्म्स किए गए लोकल गवर्नमेंट्स के। अच्छा, इन सब के अंदर 1959 के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए थे, उस वक्त हमारी सिविल सर्विस को बोला जाता था सीएसपी, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, और जो लोकल लेवल पे लोग सर्व कर रहे थे दे वर कॉल्ड सीएसपीज। 1979 में चूंकि ऑलरेडी 73 में सिविल सर्वेंट्स एक्ट के थ्रू कॉमन सिस्टम आ चुका था, कॉमन सिस्टम ने ग्रुप्स बना दिए 12 और उसमें जो सेक्रेटेरिएट वाले सीएसपीज थे उनको हमने सेक्रेटेरिएट ग्रुप में डाल दिया, जिसको आप ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप भी कहते हैं, ओएमजी, और जो फील्ड ऑफिसर्स थे उनको हमने डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया, जिनको कहते हैं डीएमजी। तो 79 और उसके बाद जो लेटर जितने आपके रिफॉर्म्स हैं, they focused on that relationship between the DMG and the elected local political executive, and of course between police as well, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस के डीपीओज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स, या अगर कैपिटल सिटीज की बात करें तो सीसीपीओ, इन सब का आपस में फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग इनके आपस में ट्रांजैक्शंस क्या होंगी और रिलेशनशिप क्या होगा, किस केस के अंदर हु वुड टेक द लीड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है यहाँ पे वो 2001 का है। याद रखिए कि इन ऑल दिस टाइम द डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी, जो आपका डीएमजी ग्रुप है या उससे पहले जो जिसको सीएसपी बोला जाता था, दे हेल्ड मैजिस्ट्रेसी पावर्स, और सबसे बड़ा टूल ब्यूरोक्रेसी का टू रूल in the local governments or in the districts was magistracy powers. The DC, the deputy commissioner in the district, had magistracy powers, and he could function as the district magistrate. यानी वो कचहरी भी लगा सकता था, वो अदालत भी लगा सकता था, and by virtue of that, by virtue of those powers, आपका जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, हु इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, और साथ जो आपका डीपीओ है, हु इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, दोनों वर काइंड ऑफ सबसर्विएंट टू द डीसी। और उसके बाद जो आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हेड है वो कौन है, आपका डिस्ट्रिक्ट का मेयर या नाजिम। He was also kind of reporting in a way to the DC. So Musharraf was the very first military dictator
who also, unlike military dictators of the past, wanted to vest greater powers within the local political executive as compared to the bureaucracy. And what he did was that through that local government ordinance of 2001, Musharraf empowered the local district Nazim against or in comparison to the deputy commissioner. और वो ऐसे हुआ कि 2001 के जो रिफॉर्म्स जब आए तो परवेज मुशर्रफ के दौर में जो रिफॉर्म्स आए उसमें इन्होंने एक नया ऑफिस क्रिएट किया which was a much weakened office compared to, of course, the DC. It was the office of the district coordination officer called the DCO. And the district's coordination officer did not have magistracy powers. So magistracy powers from the DMG were taken away in the local government ordinance of 2001, which is the highlight of the local government ordinance of 2001. Right? Magistracy powers were taken away. इस स्टोरी मैं आपको सारी सुना रहा हूँ, गौर से सुनते जाइए. माजी में 59, 79 में कभी मैजिस्ट्रेसी पावर्स को टच नहीं किया गया. मैजिस्ट्रेसी पावर्स रही और सिंपल ये होता था कि हमेशा लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने की बात होती थी. लेकिन याद रखिए मिलिट्री टाइम्स पे चूंकि 59 और 79 दोनों टाइम्स पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो जब लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने की बात होती थी तो ये कहा जाता था कि उनको फंड्स डायरेक्टली ट्रांसफर होंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होगी, एंड दे वुड बी एम्पावर्ड टू टेक देयर ओन डिसीजंस. बट दिस एम्पावरमेंट एंड this independence never took place during the military regimes. One very, very good observation that our noted economist Ali Chima makes on this on one of his papers was that though the provincial governments in 59 and 79 did not exist, however, because there were military representatives at the provincial level, say for instance in Punjab, in Sindh, there were military representatives. The local governments, for both financial and legislative, for both in both a financial and a legislative sense, were kept subservient to the provincial military masters, right? And that tells you what was happening, that there was of course empowerment, लेकिन पैसों के लिए भी और किन कवानीन के तहत local governments चलेंगी for legislative and financial matters both, they were still held subservient to their provincial masters. तो ये तो था मामला उस वक्त के 59 और 79 में कितना truly empower हुई local governments. However, on paper हमने local governments की independence और sovereignty and so on and so forth were put down on paper in 1959 and then in 1979 of course. ठीक. 59 में जब basic democracy थी तो वो under a unitary system था. 79 में we had reverted back to a federalist system. मैं भी आ रहा हूँ कि unitary और federalist क्या होते हैं, उस पर हम बाद में आते हैं. अच्छा, 2001 में DCO आ गया और मैजिस्ट्रेसी पावर्स चली गई. उसकी दो सबसे बड़ी हाइलाइट्स यही थी. उसके बाद हमारे 2013 में लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हुए. लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स जो 13 के थे उसके अंदर सबसे उसकी हाईलाइट ये थी कि द ऑफिस ऑफ द डेप्टी कमिश्नर वाज रिस्टोर्ड, वाज रीइंस्टेटेड, और डीसीओ को दोबारा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को दोबारा खत्म कर दिया. अच्छा, डीसीओ एक वीकेंड ऑफिस, एक वीक ऑफिस इसलिए था क्योंकि डीसीओ के पास मैजिस्ट्रेसी पावर्स एक नहीं थी. दूसरा, उसका काम, क्योंकि उसका नाम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर था, तो उसका काम था कि सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनको सिर्फ कोऑर्डिनेट करना. So he was just a coordinator at the district level. He was not somebody put in that position of making decisions. He was just coordinating the efforts of the various offices or institutions at the district level. He was not put into the system as a decision maker, as a policy maker at the lowest level, at the local level, at the district level. He was put into the system as somebody who would
coordinate the efforts of all the other institutions. For instance, coordinate the efforts of his own office, and then of course the police and the district mayor. And the 2001's local reforms also vested very, very large powers in the district mayor. आपको याद होगा उस वक्त जो जिला नाजिम था 2001 में, किसी भी शहर का मेयर को अगर आप देख लें तो the mayors were very, very powerful, very, very powerful, because the president of Pakistan was General Pervez Musharraf. और उस वक्त चूंकि अभी इलेक्शंस 2002 वाले नहीं हुए हुए थे, पॉलिटिकल पार्टीज की उन्होंने जो फौज अपनी हुकूमत हमेशा किंग्स पार्टी बनाती है और उसके थ्रू गवर्नमेंट बनाती है, वो नहीं बनी थी। तो सारी लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स लोकल गवर्नमेंट्स या फेडरल के, आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स के पास थी, और लोकल गवर्नमेंट्स को हेड कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट मेयर्स। सो द मेयर्स वर वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर पाकिस्तान में 128 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 128 मेयर थे पूरे मुल्क में, और वो 128 मेयर पूरे मुल्क को चला रहे थे with of course the governors in the provinces. अब चूंकि प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं थी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन फौज के गवर्नर्स सूबों में जरूर एग्जिस्ट करते थे, और वो गवर्नर्स वर द प्रोविंशियल मास्टर्स. This was before 2002. Then beginning with 2003, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी बन गई, सीएम्स भी बन गए. वो कितने एम्पावर्ड थे वो एक अलग सवाल है, लेकिन उनके साथ साथ द डिस्ट्रिक्ट मेयर्स held on to their powers as compared to, they were more powerful than the bureaucracy at the local level. But that system of course did not pay off, and development at the local level suffered greatly. Service delivery at the local level and development at the local level suffered greatly. Why? Because it was later realized that the elected local political executive, जो कि जिला नाज़िम या mayors जो elected political executive है, they were not trained and equipped to make policies and take decisions and so on and so forth. So then in 2013 we reverted back to the DC system. Deputy Commissioner office हमने restore, reinstate कर लिया, और एक चीज सिर्फ की गई कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूशनल बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी या पुलिस के मामलात हैं वहां पे द डीसीओ would support the DPO. जहां कोई जुडिशियल मामलात हैं वहां पे the DPO and the DC both would support the district and session judge. और जहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है वहां पे the DPO and the district and session judge would of course support the DC. तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल इक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश की, किसी इंस्टीट्यूशन को दूसरे के सबसर्विएंट नहीं किया. और जो मैजिस्ट्रेसी पावर्स थी वो, जिसकी वजह से जो अभी हमने एक लार्जर शुरू में क्लास के डिस्कशन की थी, सेपरेशन ऑफ पावर्स. बाय द वे अगर आप मैजिस्ट्रेसी पावर्स को देखें तो इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एट द लोकल लेवल. व्हाई? क्योंकि आपकी जो अदालती पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स थी, वो हमने एग्जीक्यूटिव को दे दी थी, राइट? So when they went back to the judiciary, meant that there was a more clearer separation of powers at the local or the district level. Of course, something that the bureaucracy or the DMG did not like, but even in the local government ordinance of 2013, magistracy powers were not returned to the DMG. यहां तक मेरी बात किसको ये पूरी कहानी नहीं समझ आई? अच्छा, यहाँ सवाल एक बड़ा अहम पूछा गया, बल्कि मैंने वो चीज समझानी थी कि लोकल गवर्नमेंट इज द सेम एज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट. देखिए, लोकल गवर्नमेंट का मतलब है लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स, ठीक है? अब उसकी डेफिनेशन में ये सारी गवर्नमेंट्स आ जाती है. अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इज अ लोकल गवर्नमेंट, अ तहसील गवर्नमेंट इज अ लोकल गवर्नमेंट, अ यूनियन काउंसिल गवर्नमेंट जो आपके घर के आसपास मोहल्ले की हुकूमत होती है, दैट इज ऑल्सो अ लोकल गवर्नमेंट, राइट? तो हमारी पाकिस्तान की क्लासिफिकेशन ऐसे है कि ये तीनों टाइप्स की गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ठीक? इनके ऊपर आपकी फिर सूबाई हुकूमत है, विच इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके ऊपर आपकी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है?
were not returned to DMG. I said magistracy powers were not returned to the DMG, right? क्योंकि हमने सारी डिस्कशन मैजिस्ट्रेसी पावर्स के बारे में कर रहे थे ना मैडम, तो उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ. जी, अच्छी थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, मजा आया सबको सुनने का. अच्छा, चलें. मैं आप लोगों को एक और बात कहूंगा, क्योंकि ये सारे कवानीन हैं, आपको पूरे पूरे पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इनको देखिए इस ट्रेजेक्टरी को. दूसरा, अगर आप लोगों के पास वर्ल्ड टाइम्स का एक मैगजीन होता है, अगर आपके पास वो है, तो उसमें मेरा जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की एक सोर्स है, आपको बुक स्टोर से वो मिल जाएगी. उसमें मेरा एक आर्टिकल है फरवरी या मार्च के महीने में. उस आर्टिकल का टाइटल है, आप उसको अभी बेशक गूगल कर लीजिए मेरे नाम के साथ, असद एजाज बट. उसका टाइटल है टर्निंग द लोकल ग्लोबल. टर्निंग लोकल ग्लोबल. जरा उसको गूगल कीजिए सब. वो अभी आपको उसके लिए आप लिखेंगे ना टर्निंग द लोकल ग्लोबल, तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा. ठीक है, मिल गया सबको, गूगल कर लिया सबने. उसका जरा पहले कुछ पैराग्राफ पढ़िए. उस आपको वो पूरा आर्टिकल एक्सेस नहीं होगा, उसके लिए आपको वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन इस महीने का खरीदना पड़ेगा. आई थिंक ये मई के महीने में आया हुआ है आर्टिकल, या आप इसका ऑनलाइन एक्सेस ले लीजिए. वर्ल्ड टाइम्स के ऑनलाइन अगर आपने एक्सेस लेना है, या फिर आपका अगर आप ऑनलाइन एक्सेस लेते हैं, आई थिंक इट्स अराउंड 300 to 400 रुपीज अ मंथ. 300 रुपीज अ मंथ आई थिंक, अगर तो आपने इसका ऑनलाइन एक्सेस, और मंथ में एक ही आता है मैगजीन, सो इट्स लाइक नहीं सॉरी, या सो देयर इज वन मैगजीन अ मंथ एंड इट्स अराउंड 300 रुपीज. तो आपको फुल ईयर की सब्सक्रिप्शन दे देते हैं. अदरवाइज यू कैन जस्ट बाय इट फ्रॉम द बुक स्टोर्स, वहां से भी इतने इतने कई 300-400 रुपए का ही मिलता है. जी, गॉट इट एवरीवन. या या चलें, थैंक यू फॉर कॉपी पेस्टिंग दिस. तो जो काफी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो इस आर्टिकल में आपको ऑलरेडी लिखी हुई मिल जाएंगी. तो अगर आप नोट्स की सूरत में इसको चाहते हैं, तो वहां से भी आपको मिल सकता है. ठीक है, यू कैन मेक पॉइंटर्स फ्रॉम दिस आर्टिकल. और ये बेस्ड ऑन माय रिसर्च, इसमें मैंने 59, 79, 2001 सब रिफॉर्म्स के ऊपर दो दो तीन तीन लाइंस लिखी हैं. और इस पेपर के लिए आपको इससे ज्यादा की जरूरत शायद ना पेश आए. Yes, yes. 1959, 79, 2001, 2013. Yes. 69 में भी हुए थे, पर वो इतने नोटेबल नहीं है रिफॉर्म. जी जी, सदाम साहब, इंट्रो इसलिए शो हो रही है कि यू हैव टू बाय द मैगजीन, या फिर आपको ऑनलाइन वर्ल्ड टाइम्स की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी. वैसे सब सीएसएस के बच्चों को मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम माय आर्टिकल, के ये करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन जरूर पढ़ें. तो आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए.
ओके, अच्छा एक बात याद रखिए कि जब 2013 का लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आए, वो आए 18th अमेंडमेंट के बाद, बिकॉज द 18th अमेंडमेंट, जी सिविल सर्विस रिफॉर्म पार्ट 1 एंड 2, जी ये भी सिविल सर्विस रिफॉर्म पे भी मेरा एक आर्टिकल है, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं टर्निंग द लोकल ग्लोबल वाले आर्टिकल की जिशान साहब बात कर रहा था, क्योंकि वो हमारे ये लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के ऊपर है। मैजिस्ट्रेसी पावर्स तो फात साहब 2013 के बाद नहीं, 2001 के बाद मैजिस्ट्रेसी पावर्स ले ली गई थी उनसे, और 2013 में भी वापस नहीं की गई। तो बाकी अब पैस वाले जो डीएमजी वाले जो हैं वो अपना बस काम करते हैं, जो डीसी का काम है डिस्ट्रिक्ट में, डेवलपमेंट का, रेवेन्यू कलेक्शन का, सर्विस डिलीवरी का, ये तीनों काम करते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं, हेल्थ के, एजुकेशन के, सर्विस डिलीवरी देते हैं हेल्थ की, एजुकेशन की, और रेवेन्यू कलेक्शन। असल काम तो रेवेन्यू कलेक्शन का है ना, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वाटर टैक्स है, सेस है, all of those things are collected by the DC. नहीं जी, they do not have powers to imprison. वो केस अदालत को रेफर कर सकते हैं, पुलिस को रेफर कर सकते हैं। ये उन्हीं जगहों पे है जहां आप शायद इस्लामाबाद की सुब्तगीन खान, इज दैट अ फीमेल नेम और अ मेल नेम? पहले तो ये बताइए। ओके ओके, मेल, अंडर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। नहीं, आप गालिबन बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की या उन शहरों की जहां मैजिस्ट्रेसी पावर्स अभी भी हैं डीएमजी के पास। तो वहां पे सिचुएशन डिफरेंट है। इस्लामाबाद चूंकि जितने ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस सूबों में आए, नहीं, रेवेन्यू कलेक्शन को करता है डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट जो टैक्सेशन या रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटीज हैं जी। केपी में नहीं है, कुछ केपी पूरे सूबे में नहीं है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, केपी के अंदर भी मैजिस्ट्रेसी पावर्स हैं, बिल्कुल है, एब्सोल्युटली, आप ठीक कह रहे हैं। चलो जी आगे चलते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन तो डीआरओ नहीं करता है, वो रेवेन्यू कलेक्शन कलेक्टिंग बॉडीज ही करती है, लेकिन जो ओवरऑल हेड है ना डिस्ट्रिक्ट की रेवेन्यू कलेक्शन की, जिसके पास ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस तरह फॉर इंस्टेंस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, वो जिस तरह फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर आता है ना। आईसीटी का एक इदारा है एक्साइज एंड टैक्सेशन। अब फॉर इंस्टेंस आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का टैक्स है, एक रेवेन्यू है ना स्टेट को, वो रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा है? एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट अंडर द आईसीटी। अब इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो क्या है? आईसीटी, ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और आईसीटी जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट है, ठीक। अब इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 बड़े इदारे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद, जो आपको बेसिक वाटर, सैनिटेशन, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो आपके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे अस्पताल बनवाना, सड़कें बनाना, वो उसके लिए हमारे डेवलपमेंट की अथॉरिटी अलग है, जिसको हम सीडीए बोलते हैं। और तीसरी है इस्लामाबाद की पूरी गवर्नमेंट, आईसीटी। आईसीटी को हेड करता है चीफ कमिश्नर, और उसके नीचे होता है डिप्टी कमिश्नर, डीसी। और आईसीटी का एक फंक्शन है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब आप गाड़ी रजिस्टर कराने जाते हैं इस्लामाबाद में, तो आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास है, आप उस डिपार्टमेंट को फीस देंगे, विच इज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो भी डायरेक्टर है, जो भी उसको हेड करता है, इज अल्टीमेटली रिपोर्टिंग टू द डीसी, हु इज हमजा शफकात।
और गवर्नमेंट ने डीसी से पूछना है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, इसलिए उस रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट की, डीसी की, और उस डीसी ने कोऑर्डिनेट करना है इन सब टैक्स कलेक्टिंग और रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसीज के काम को, और इंश्योर करना है कि उस डिस्ट्रिक्ट के जो रेवेन्यू के या टैक्स के जो टारगेट्स हैं वो मीट हो। फिर वो पैसा इकट्ठा करके डीसी ने प्लान भी करना है कि वो पैसा खर्च कैसे होना है, किन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे वो पैसा खर्च होगा। वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फिर एमसीआई के थ्रू किए जाते हैं या सीडीए के थ्रू इंप्लीमेंट होते हैं। ये चूंकि दोनों इंप्लीमेंटिंग बॉडीज हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या सीडीए, तो वो फिर वंस दोस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड, तो वो थ्रू द मनी दैट द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड, वो रेवेन्यू प्रोजेक्ट्स फिर वो इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, ओ सॉरी, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फिर वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये इस तरह का एक रफ सा प्रोसेस है जो मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी, समझ आ गई यहां तक बात? अच्छा, अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे वापस आते हैं। ये भी क्योंकि मैं लोकल गवर्नमेंट्स पे आ गया था, तो मैंने कहा एक ही दफा ये सारे लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंसेस और रिफॉर्म्स भी मैं समझा दूं। अब वापस आते हैं, आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर ये है कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, उसके नीचे आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, और उनके नीचे आपकी लोकल गवर्नमेंट्स है। लोकल गवर्नमेंट्स में आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तहसील गवर्नमेंट, सबको मैं इकट्ठा एक कैटेगरी में शामिल करके उसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान में इन लोकल गवर्नमेंट्स, इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अलावा इन तीनों टीयर्स या इन तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नेंस पे, एक फेडरल, एक प्रोविंशियल और फिर लोकल पे वेरियस इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस सारे के सारे इस गवर्नेंस प्रोसेस का हिस्सा हैं, जो फेडरल लेवल पे हैं, जो प्रोविंसेस में हैं, और उससे नीचे जो लोकल लेवल पे। एक तो बात ये हो गई। अच्छा, और चूंकि प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं एज कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज फेडरलिस्ट इन नेचर। लेकिन फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर की, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वी हैव अ फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर और वी आर अ फेडरेशन, तो उसकी चंद शराइत हैं। उसमें से एक अहम शर्त ये है कि अगर आप कहते हैं कि हम फेडरलिस्ट हैं, तो आपने खाली the mere existence of provincial government or local government is not enough. You also have to empower the provincial and the local governments. You also have to give political, financial, and legislative independence to the provincial and the local governments. That is very, very important. If they have the independence to make their own laws, if they have the independence to take their own decisions, if they have the independence to raise their own funds and spend their own money in whatever way they want to, तो तब आपकी फेडरेशन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, और उसको हम कहेंगे स्ट्रांग फेडरलिज्म। और अगर सिर्फ बराए नाम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन उनके पास कोई पावर्स नहीं होंगी, फाइनेंशियल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, तो वो आपके आपके उसको हम बोलेंगे इट्स अ वीक फेडरेशन। अच्छा, मुझसे अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं, आप लोगों ने अभी तक नहीं पूछा, कि सर आप कह रहे हैं फेडरेशन है और फेडरलिस्ट सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, और आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि पावर्स फेडरल गवर्नमेंट से लेके सूबों को और सूबों से लेके लोकल गवर्नमेंट तक दे दी जाए, तो फिर ये फेडरलिस्ट तो ना हुआ, ये तो एंटी फेडरलिस्ट सिस्टम है, क्योंकि पावर्स तो फेडरल गवर्नमेंट से स्नैच करके हम सूबों को और सूबों से नीचे डिवॉल्व कर रहे हैं पावर्स को। तो उसका जवाब ये नहीं है। इस सिस्टम को फेडरलिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि फेडरेशन की एक फेडरेशन स्ट्रॉन्ग तब होती है आपकी, जब पावर्स जो है फेडरेशन के हर कोने कोने में, अगर सारी पावर्स हमने इस्लामाबाद में इन्वेस्ट कर लेनी है, तो उसका वो फिर इट्स अ वीक फेडरेशन। फेडरेशन स्ट्रॉन्ग तब होगी जब पूरे मुल्क के हर शहर के अंदर पावर्स की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और पावर्स से बार बार बता रहा हूं, मेरा मतलब फाइनेंशियल पावर्स भी है, मेरा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी है, मेरा मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स भी है। ठीक है,
तो जितनी ज्यादा पावर्स की इक्विटेबल और मुल्क के हर कोने में एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती जाएगी, उतने ही ज्यादा, जितनी वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होगी और इक्विटेबल होगी, उतनी ज्यादा फेडरेशन आपकी या दिस सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म विल बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक, बिल्कुल 18th अमेंडमेंट ने यही किया। अच्छा, इसके बरक्स एक और गवर्नेंस सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी। यूनिटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप पूरे मुल्क को एक यूनिट बना दो, उसके वेरियस टीयर्स या लेवल्स ऑफ गवर्नेंस ना बनाओ, गवर्नेंस सिर्फ एक ही लेवल पे हो रही है। हमारा आज का टॉपिक था ना मल्टी लेवल गवर्नेंस, क्योंकि पाकिस्तान में मल्टी लेवल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। फेडरल पे गवर्नेंस अलग से हो रही है, सूबों के लेवल पे अलग से हो रही है, फिर उसमें तीसरा लेवल भी है, ठीक है ना, जो लोकल गवर्नमेंट्स, और लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर भी फिर 2-3 लेवल्स, व्हिच इज व्हाई इट्स कॉल्ड मल्टी लेवल गवर्नेंस। तो डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग इन सब लेवल्स के ऊपर हो रही है। और गवर्नेंस को हम बेसिक टर्म्स में डिफाइन करते हैं एज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो खाली पॉलिसियां बन नहीं इन 3 लेवल्स पे, पॉलिसियां इंप्लीमेंट भी हो रही हैं इन 3 लेवल्स पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यूनिटरी, अब यूनिटरी की अहम मिसाल है जो मुझे एक ही मिसाल ज़हन में आती है, वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके। कभी आपने सुना है कि यूके में फलाना प्रोविंस है और उसकी गवर्नमेंट ने ये कर दिया? नो, यू ओनली हेयर अबाउट द यूके गवर्नमेंट और यू हेयर अबाउट द काउंटीज। अब यूके में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको वो काउंटीज बोलते हैं, एंड द एंटायर डेवलपमेंट इन द यूके, जो भी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होने हैं वो काउंटी लेवल पे होते हैं। और जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली फंड्स ट्रांसफर करती है टू द काउंटीज। ठीक, and the country operates, चूंकि the provinces do not exist, the country operates as one unit, पूरा एक ही यूनिट है, कोई उसमें दरमियान में बाइफर्केशन, सेग्रीगेशन, दीवारें नहीं है। the country operates, there are no states, there are no provinces। अमेरिका में स्टेट्स हैं, पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं, इंडिया में प्रोविंसेस हैं, बांग्लादेश में प्रोविंसेस हैं, इंग्लैंड में कोई प्रोविंस, कनाडा में प्रोविंसेस हैं, ओंटारियो एक प्रोविंस है, सस्कैचुअन एक प्रोविंस है, न्यू ब्रंसविक एक प्रोविंस है, आई कैन नेम सो मेनी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टेट्स और प्रोविंसेस हैं, मेलबर्न, ये जो सॉरी दीज बिगर वंस, क्या नाम है इनके, फॉरगॉटन द नेम्स, एनीवेज ऑस्ट्रेलिया में है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जैसे है एक स्टेट, इस तरह देयर सो मेनी इन ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान में है, इंडिया में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, बहुत ज्यादा। केरला तो हमारे सिलेबस में भी है, केरला का मॉडल। यूके में कोई स्टेट, कोई प्रोविंस नहीं है, और चूंकि कोई स्टेट, कोई प्रोविंस नहीं है तो इट्स वन यूनिट, उसको हम यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अच्छा, जब आप प्रोविंसेस और स्टेट्स की बात करते हो, मैंने थोड़ी देर पहले ये आर्गुमेंट दिया था कि प्रोविंसेस और स्टेट्स कितनी एम्पावर्ड हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आई होप आप लोग मेरी बातों के साथ आज अपने नोट्स खुद बना रहे हैं और लिख भी रहे हैं, क्योंकि आज का ये वाला लेक्चर में, अच्छा आपको ये मजे की बात बताऊं कि जो मैंने आपको नोट्स भेजे भी है ना मल्टी लेवल गवर्नेंस और सिविल सर्विस रिफॉर्म पे, माजी में भी आपको बहुत ज्यादा नोट्स की बेसिक बातें शायद 1-2 सफे लिखे हो, क्योंकि हमेशा मैं इस लेक्चर को एक स्टोरी की तरह पढ़ाता हूँ। तो मैं इस पे कभी भी नोट्स डिक्टेट नहीं करवाता, क्योंकि ये सारे कवानीन हैं, और कवानीन में आपको ऑर्डिनेंसेस या कवानीन पूरा लिखवा नहीं सकता क्लास में, उनकी मेजर छोटी मोटी में हाईलाइट्स आ, तो ना इसमें कोई डेफिनेशंस हैं, ना उस तरह से कुछ है। तो मैं इसको हमेशा एक लेक्चर फॉर्म में विदाउट डिक्टेटिंग एनीथिंग पढ़ाता हूँ, लाइक अ स्टोरी, और उसमें से बच्चे अपने नोट्स खुद ही बना लेते हैं। तो आई होप आप लोग अपने पॉइंट्स इसमें से, मेरी इस डिस्कशन में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इस लेक्चर में से, यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स। तो लेकिन अभी हम 18th अमेंडमेंट और सिविल सर्विस रिफॉर्म पे आएंगे, तो उनके हम 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट्स जरूर लिखेंगे।
तो जी मैं कहाँ था, अच्छा हाँ, फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर पे वापस आ रहा था। अब फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर जो स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म है ना, तो मैं थोड़ी देर पहले ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इट इज नॉट इनफ दैट प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट इनफ। उनको आपने पॉलिटिकली कितना इंडिपेंडेंट या पावरफुल किया हुआ है, ये है आइडिया। और वो कितने पॉलिटिकली पावरफुल या इंडिपेंडेंट हैं, इसमें बहुत सारी चीजों पे चीज डिपेंड करती है। एक सवाल इसमें यह है कि डू द प्रोविंसेस हैव देयर ओन पार्लियामेंट्स और ओन असेंबलीज। इस सवाल का क्या मतलब है कि लेजिस्लेटिव पावर्स उनके पास अपनी हैं कि नहीं। अगर सूबा एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके पास अपनी असेंबली ही नहीं है, कोई उस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, तो वो सूबा तो इसका मतलब है कि सूबा एग्जिस्ट करता है बट इट इज स्टिल वीक फेडरलिज्म। सूबे क्या इंडिपेंडेंट हैं कि वो अपने रेवेन्यूज खुद रेस करें? क्या वो अपनी टैक्स अथॉरिटीज खुद बना सकते हैं या नहीं बना सकते? ये दूसरा सवाल है। क्या सूबे अपनी पॉलिसीज खुद बना सकते हैं या नहीं बना सकते? क्या उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यानी प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? जैसे फॉर इंस्टेंस, आपके पास आपका सूबा तो पंजाब बन गया, लेकिन ना सूबे के पास अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है, ना सूबे के पास अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ना सूबे के पास अपना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, ना सूबे के पास अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ना लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है। ये सारे मिनिस्ट्रीज सिर्फ फेडरल में एग्जिस्ट करती हैं, और इस सूबे के अंदर भी वही मिनिस्ट्रीज सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। पॉलिसीज भी वो बना रही हैं, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट भी वो कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स भी वो डिजाइन कर रही हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट भी वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सूबे का अपना सेक्रेटेरिएट कोई नहीं है, और सारे प्रोजेक्ट्स, प्लान्स, पॉलिसीज फेडरल से आ रहे हैं। तो तो अगर सूबे के पास अपनी असेंबली है भी, तो लेजिस्लेटिव पावर्स तो है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। और फाइनेंशियल के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि क्या सूबे के पास अपनी टैक्स अथॉरिटीज हैं, वो अपने फाइनेंसेस खुद रेस करते हैं, और उसके बाद उनके पास इंडिपेंडेंस है कि वो अपने फाइनेंसेस जो रेस किए हैं पैसा, उसको खुद स्पेंड भी कर सके। अच्छा, ये तीनों अहम बातें हैं। तो आप अब इसको मैप कर सकते हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ 2009 के ऑर्डिनेंस के बाद। जीबी के अंदर, अगर इस क्लास में कोई जीबी के लोग हैं तो वो बेहतर बता सकते हैं कि असेंबलीज और उसके बाद सीएम बने, तो वो भी इसी पाकिस्तान के अंदर स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाने का हिस्सा था, शाखसाना था। वो प्रोसेस कितना अच्छा हुआ कितना नहीं हुआ इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन सवाल ये था कि जीबी के पास अपनी असेंबली हो, उनके पास अपना सीएम हो, और लेजिस्लेटिव पावर्स जीबी के पास चली जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो, उनका पूरा जीबी का अपना सेक्रेटेरिएट हो जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ताकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी, और साथ साथ उनका जो शेयर डाला गया और हमारे पाकिस्तान के फाइनेंसेस में जो पैसा उनको ट्रांसफर होता था, फिर वो अपना पैसा खुद भी रेज कर सकते हैं। दे कैन रेज देयर ओन रेवेन्यूज, देयर ओन टैक्सेस। तो कोशिश ये की गई कि जीबी को भी हम फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स प्रोवाइड करें, और पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बन सके। बाकी 4 सूबों में तो पहले से एग्जिस्ट करता था, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, सिंध में। सब सूबों के पास अपने अपने सेक्रेटेरिएट्स थे, सब सूबों के पास अपनी असेंबलीज थी, और सब सूबे के पास अपनी अपनी टैक्स अथॉरिटीज और रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसीज थी, ताकि वो दे वर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज वेल। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में एक बहुत बड़ा सवाल था कैपेसिटीज का, कि क्या वो अपने फंड्स किस हद तक रेज कर सकते हैं। और अभी भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी मुल्क में थी, जिसकी कैपेसिटी बिल्ड हुई हुई थी, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, विच वाज एट द फेडरल लेवल। और सूबों में भी लोगों से बहुत किस्म के टैक्स जो है वो सूबों में, चूंकि सारी पॉपुलेशन सूबों में ही रहती है, फेडरल में तो अपनी पॉपुलेशन सिर्फ इस्लामाबाद शहर की है, तो इसलिए एफबीआर सारे इनकम टैक्सेस और मेजर टैक्सेस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। इसलिए हम वी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन, जिसके तहत वो पैसा, जिसको हम एनएफसी बोलते हैं, वो पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसको फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए डिसबर्स किया जाता है टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उसका जब 7th एनएफसी अवार्ड आया 2009 में,
during the People's Party government. So that was hailed as a very, very good reform to the Finance Commission, to how financial distribution was being done in Pakistan. उस रिफॉर्म के तहत बहुत सारी और उसमें बातें होंगी, लेकिन एक चीज ये थी कि we made changes to the divisible pool. Divisible pool क्या है एनएफसी का? अच्छा, एक दो बातें एनएफसी के बारे में मैं लिखवाता हूं, फिर आगे चलते हैं. हेडिंग दीजिए नेशनल फाइनेंस कमीशन. चलें, बस ये एनएफसी लिख लीजिए, फिर नमाज ब्रेक कर लेते हैं. और इसके 3-4 पॉइंट्स हैं, वो मैं लिखवा दूं. The 7th National Finance Commission Award 2009 was hailed as a milestone for achieving fiscal federalism. Was hailed as a milestone for achieving fiscal federalism. The NFC award reflected a new political consensus. The NFC award reflected a new political consensus about the necessity about the necessity of transferring resource control to the province. अगला पॉइंट लिखिए. It increased the share of the provinces. In the federal divisible pool. By 10% from 47.5% to 57.5%. From 47.5% to 57.5%. Distributive, अगला पॉइंट लिखिए. Distributive criteria was not solely based on population, but other dimensions including revenue generated, poverty, inverse population density, etc. Revenue generated, poverty and inverse population density. पहले क्राइटेरिया 7th एनएफसी से पहले हमेशा सिर्फ पॉपुलेशन ही होता था. जिस सूबे की ज्यादा पॉपुलेशन है उसको डिविजिबल पूल का ज्यादा हिस्सा मिल जाता था. डिविजिबल पूल क्या है? डिविजिबल पूल ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट 100 रुपया कलेक्ट करती है एज रेवेन्यूज, तो उसमें से 47.5 रुपीज यानी 47.5% would be divided, is divisible among the provinces. उससे ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता. और बाकी 52.5 फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी. लेकिन इसके बाद ये हुआ कि इन्होंने नया डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया बनाया जिसमें 5 चीजें थी जो मैंने अभी बताई कि कौन सा सूबा खुद से अपना रेवेन्यू कितना जनरेट करता है. अगर आप ज्यादा अपना रेवेन्यू एफर्ट करोगे जनरेट करने की. दूसरा, उस सूबे में गुर्बत कितनी है, पॉवर्टी. तीसरा, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी है कि सूबे का जितना एरिया है एज पर एरिया कितने लोग रहते हैं. ठीक. लेकिन हमने उसका इनवर्स कर दिया. व्हाट इफ एक सूबा बहुत छोटा है लेकिन उसमें लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, इसका मतलब उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है.
तो उस पॉपुलेशन के क्राइटेरिया बीच में होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, हालांकि उसका एरिया इतना बड़ा नहीं है। तो इन्होंने पॉपुलेशन के साथ एक इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी भी डाल दिया उन सूबों के लिए, जैसे बलूचिस्तान है, जिनके अंदर पॉपुलेशन तो कम है, लेकिन एट द सेम टाइम उन सूबों का एरिया बहुत बड़ा है, जो जो इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी का यहाँ पे मेजर उस चीज को कैप्चर करेगा। ठीक, आई होप ये आपको बात समझ आ गई। अच्छा, अगला पॉइंट लिखिए इसके बारे में, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन प्रोविंसेस एंड बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज आल्सो एंश्योर्ड। जो डिस्प्यूट्स थे इनके वो खत्म हो गए। तो ये 4 मेजर पॉइंट्स थे एनएफसी अवार्ड के। अच्छा, एक बात याद रखें, जो इंपॉर्टेंट 10% वाली मैंने बात की थी, वो ये थी, पहले माजी में पैसों के ऊपर बड़े डिस्प्यूट्स थे कि सूबे को इतना मिल गया, उसको इतना मिल गया। अच्छा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का यहाँ पे ये, सॉरी, जो 10% शेयर इंक्रीज हुआ था 7th एनएफसी अवार्ड में, वो ये हुआ था कि उस वक्त तक फेडरल गवर्नमेंट वाज हैड अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्टली डील करती थी। लेकिन 7th एनएफसी अवार्ड एक तरह से फिस्कल फेडरलिज्म, मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि हमने फिस्कल पावर्स डिवॉल्व कर दी टू द प्रोविंसेस। इसको हम फिस्कल फेडरलिज्म भी बोलते हैं, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो फिस्कल पावर्स सेंट्रलाइज थी कि फेडरल खुद ही पैसा इकट्ठा करता था, सेंटर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट थी, सेंटर खुद ही पैसा इकट्ठा करता था, खुद ही खर्च करता था। अब जाहिर बात है, कुछ 47.5% वो सूबों को देते थे, लेकिन लार्जर शेयर 52.5% फेडरल के अपने पास था। बाद में जब हमने एक स्ट्रॉन्गर फेडरेशन इवॉल्व करने की कोशिश की, तो उसकी तरफ पहला स्टेप जो था वो 7th एनएफसी अवार्ड था 2009 का, और उसमें हमने क्या किया था कि हमने 10%, इकट्ठा ही 10%, विच इज अ ह्यूज चेंज, शेयर बढ़ा दिया था डिविजिबल पूल का। यानी अब नया आपका फॉर्मूला क्या है, 57.5% is shared distributed amongst the provinces based on a certain criteria, and the rest 42.5% is kept with the federal government. और जो 57.5% सूबों को जाता है, उससे उसमें वो किस सूबे को कितना मिलेगा डिपेंड्स ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, जिसमें पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है, और रेवेन्यू जनरेटेड इंडिजिनसली बाय द प्रोविंसेस, वो भी उसका एक क्राइटेरिया है। तो इस सब क्राइटेरिया की बेसिस पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये 4 पॉइंट्स, और इसमें फिर ऑफ कोर्स एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी था 7th एनएफसी अवार्ड, क्योंकि उससे पहले पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सूबों के आपस में, और फेडरल और सूबों की भी, और सूबों की आपस में भी बहुत सारी लड़ाइयां थी जिनको रिजॉल्व किया 7th एनएफसी ने। अच्छा, यहाँ पे रोकते हैं, वापस आके 18th अमेंडमेंट से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन के अंदर हम सिविल सर्विस रिफॉर्म के भी मैं 5-6 पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, जो कि जिनके ऊपर गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है, लेकिन उनकी हमें इतनी डिटेल्स में नहीं जाना, सिर्फ 4 या 5 में हेडिंग्स लिखाऊंगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उनसे आपको खुद ही बात की समझ आ जाएगी कि किस तरह के रिफॉर्म्स पाकिस्तान में होने चाहिए। ठीक है जी, लेट्स स्टॉप हियर फॉर द नमाज ब्रेक एंड वील कम बैक, या 8 o'clock तक, हाँ जी 8 बजे वापस आ जाइए। ओके जी, बाय बाय जी। गवर्नेंस स्ट्रक्चर के टीयर्स की डिटेल्स बिल्कुल पढ़ेंगे, वो तो हिस्सा है ही है, वो तो बिल्कुल हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है, लेकिन उसकी डिटेल्स आज के सेशन में नहीं होंगी। उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं हर टीयर के अंदर, उनके ऊपर हम एक नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट में हम करेंगे, जिसमें मैं हर इंस्टीट्यूशन के बारे में 2-2 4-4 लाइंस लिखवाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू।
Hi, everyone. I hope everyone is back. Sorry, five more. Planning to be back at 8. It's 8:10 now. Okay, let's put in solid uh, more 50 minutes into it. We'll go till 9:05, 9:10. Okay, heading दीजिए 18th Amendment. 18th Amendment. Eighteenth Amendment. लिखिए. The amendment aims at something called participatory federalism, amendment aims at something called participatory federalism, where where the government aims where the government is trying to where aims are clear, where the government is trying to foster foster where the government is trying to foster a stronger federation, where the government is trying to foster a stronger where the government is trying to foster a stronger federalism by ensuring ensuring आप लोग पूछ रहे हैं इज इट द सेम टॉपिक ऑफ कोर्स एक तो पहले तो मैं क्लास शुरू होने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आज के सारे टॉपिक्स बता चुका हूँ फिर उसके बाद मैं अभी ब्रेक से जाने से पहले मैं तफसील से बता के गया हूँ कि हमने क्या किया और हम ब्रेक के बाद क्या करेंगे इन टॉपिक्स का आपस में ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है 18th अमेंडमेंट और एनएफसी आपके गवर्नेंस सिस्टम का हिस्सा है क्योंकि जो मैं फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम्स पढ़ा रहा था वो स्ट्रॉन्गर फेडरेशन बनी है एनएफसी और 18th अमेंडमेंट के थ्रू और पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्गर फेडरलिज्म इवॉल्व हुआ है ये बात भी मैं ब्रेक जाने से पहले बता कर गया हूँ तो टॉपिक को समझ ना आए वो एक जरूर आप सवाल पूछिए और वो एक सवाल लेकिन अगर एक क्लास में बार बार ये सवाल पूछा जाए कि आज का हमारा टॉपिक है क्या क्लास के आखिरी 45 मिनट में तो वो थोड़ी सी परेशान कुन बात है कि आपको ये फिगर आउट नहीं हो रहा कि इन टॉपिक्स का आपस में लिंकेज क्या है क्या ये नया टॉपिक है या पुराना टॉपिक है एनीवेज मुझे भूल गया मैं कहाँ पे था क्योंकि बार बार ये कमेंट्स आते हैं ग्रुप में इससे फिर क्लास का सबका टाइम जाया होता है okay by ensuring the following steps foster a stronger federation by ensuring the following steps या the following ways भी लिख सकते हैं number 1 ये मैं 18th amendment के कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं number 1 an attempt to prevent future military takeovers
an attempt to prevent future military takeovers through prohibition, an attempt to prevent future military takeovers through prohibition of judicial endorsement of the unconstitutional military takeovers. Through prohibition of judicial endorsement of unconstitutional military takeovers. Bracket में लिख दीजिए, there is no guarantee of this. बस ये लिख दीजिए, there is no guarantee of this. दूसरा पॉइंट लिखिए, executive authority now vested in the prime minister. Executive authority now, जो article 90 आपका कहता है, as per article 90, executive authority now vested in the prime minister, which shall strengthen the legislative arm of the government. Which shall strengthen the legislative arm of the government. Which shall strengthen the legislative arm of the government. The president, who was the head of the executive, prior to the 18th Amendment, can no more dissolve the assemblies. अगला पॉइंट लिखिए, education was declared the fundamental right of every citizen. In Article 25A. In Article 25A on free and primary education. I'm sorry, guys, I've not had lunch. I've not had dinner. I'm actually very, very hungry while I'm taking this class, and I've been speaking for the last 2 hours, and I could not eat anything during the break. Abhi ye jo namaz break thi. So I'm sorry for this crunching voice jo aapko abhi sunni padegi. I just have a packet of Lay's chips. It's what I'm trying to eat while I speak. So apologies for the crunching that you will hear during the session. ओके तो ये जो 25A है, इसको शामिल किया गया इस तरमीम 18वीं तरमीम के थ्रू, इस अमेंडमेंट में 25A को शामिल किया गया ऑन प्राइमरी एजुकेशन, व्हिच इज द राइट टू प्राइमरी एजुकेशन. आपको पता है आर्टिकल्स 8 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट, आई लव दिस फ्लेवर ऑफ लेज, जो एक योगर्ट एंड हर्ब एक फ्लेवर है, yogurt and herb. That's very, very good.
I'm not a big fan of chips, but if I have to see, yeah, the green one, yes, yes, the green one, yes. Shersha साहब आप ठीक बता रहे हैं. I love that flavor. I'm not a big fan of chips, but if I have to eat them, किसी दिन मजबूरी में अगर मुझे खाना पड़े because they're not very healthy, but if I have to eat them, तो मैं यही खाता हूँ. Somebody recommended me to have the paprika one, but I didn't like it. मुझे खाने का आज वक्त नहीं मिला पूरा दिन, इसलिए मैंने नहीं खाया. मैं आई वाज वर्किंग, हालांकि आज सैटरडे था, इट वाज एन ऑफ डे, लेकिन मुझे सुबह भी कुछ काम थे. आई वाज इन बैक टू बैक मीटिंग्स ऑन द फोन, और फिर 6 बजे क्लास शुरू हो गई, तो बिल्कुल वक्त नहीं मिला. चलें आप भी कुछ खाना खाएं. अजीम शाह साहब. आजिम शाह, आजिम अब्दुल आजिम शाह. ओके, चले जी आगे चलते हैं. तो 8 to 28 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के are articles on fundamental rights. तो ये जो आर्टिकल्स हैं, ये सब हर आर्टिकल 8, 9, 10, 11 किसी एक कोई एक राइट इनंसिएट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, हर आर्टिकल. तो फ्री प्राइमरी एजुकेशन का डाला गया इसमें ताकि प्राइमरी एजुकेशन पूरे मुल्क में फ्री की जा सके. ये ना हो कि कोई सूबा फ्री कर रहा है, कोई सूबा फ्री नहीं कर रहा. तो सरकारी स्कूलों के अंदर से फीस खत्म कर दी गई थी 18वीं तरमीम के बाद. फ्री प्राइमरी एजुकेशन का इसमें एक 25A डाला गया था. अच्छा, अगला पॉइंट देखिए. प्रोविंसेस विल हैव एग्जीक्यूटिव legislative powers in their hands. And they will enjoy complete autonomy and freedom in enacting all provincial laws. अगला पॉइंट लिखिए. मैडम वजीहा, मैं कह रहा हूं एंड फ्रीडम इन इनैक्टिंग ऑल प्रोविंशियल लॉज, कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम इन इनैक्टिंग ऑल प्रोविंशियल लॉज. जी शेरशाह साहब आप ठीक बता रहे हैं. राइट टू privacy, life, fair trials, yeah, all of those. स्लेवरी के ऊपर है, एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी पे, विमेन राइट्स हैं इसी में. जी अगला पॉइंट बड़ा अहम है, वो लिखिए. The share of the provinces as enumerated in the 7th NFC award, क्योंकि 18वीं तरमीम आई थी 2010 में, तो तब तक 7th NFC ऑलरेडी हो चुका था. The share of the provinces as enumerated in the 7th NFC award cannot be constitutionally reduced. Hence, आगे लिखिए, hence the 18th amendment made the derailment I think it's the 5th point, made the derailment. 6th, शेरशाह साहब मैंने कहा है the share of the provinces as enumerated in the 7th NFC award cannot be constitutionally reduced.
hence the derailment of the 7th NFC world, hence the derailment of the 7th NFC world, or fiscal federalism was made difficult. यानी इस बात का ये मतलब है कि कोई फ्यूचर में खुद से उठ के दोबारा ये नहीं कह सकता कि अगर डिविजिबल पूल 57.5% पे है तो उसको कम करके दोबारा 52.5 पे ले आओ या 47.5 पे ले आओ, तो उसमें रिडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है आपके डिविजिबल पूल के अंदर, यानी जो प्रोविंसेस का शेयर है उसमें. Hence, the derailment of fiscal federalism and 7th NFC was made difficult. अब्दुल्ला साहब ठीक है, आपको समझ आ गई? चलें जी आगे. फिस्कल फेडरलिज्म की डिरेल नहीं आप कर सकते ना. आपका जो 7th NFC था उसके बारे में मैंने अभी लिखवाया था कि वो फिस्कल फेडरलिज्म थी. फिस्कल फेडरलिज्म क्या है कि फिस्कल का ताल्लुक है पैसों से, रेवेन्यू कलेक्शन और रेवेन्यू और उसको स्पेंडिंग. देखें, फिस्कल के मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट करती है और उसके बाद उस पैसे को स्पेंड करती है, इन दोनों चीजों को कहते हैं द फिस्कल साइड. इनको कहते हैं फिस्कल डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट. फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब यह है कि जो आपका पैसा है, यानी फिस्कल डिसीजंस या फिस्कल पावर्स, जिसको आप फाइनेंशियल पावर्स समझ लें, इसको आप फिस्कल फेडरलिज्म ना कहें, फाइनेंशियल फेडरलिज्म, वो पावर्स पूरे मुल्क में नीचे डिवॉल्व कर दी जाएं सूबों को, और पूरे मुल्क में वो पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं. ये मतलब है इस बात का. तो इन्होंने, चूंकि आइन में 18वीं तरमीम में डाल दिया गया कि सूबों को 7th NFC के अंदर जो शेयर मिला था उसको रिड्यूस अब नहीं किया जा सकता, तो इस बात का मतलब यह है कि डिविजिबल पूल का बढ़ाया फ्यूचर में जरूर जा सकता है, लेकिन अब वो रिवर्ट नहीं हो सकता. अगर 57.5% डिविजिबल पूल रख दिया गया था एज पार्ट ऑफ द फिजिकल as part of the idea of fiscal federalism, तो उसको वापस करके दोबारा 52.5% पे लाना या 47.5% पे लाना अब मुमकिन नहीं था. अगला पॉइंट लिखिए, जो कि आखिरी पॉइंट है. The amendment also enhanced the amendment also enhanced the role of the Council of Common Interest in relation to matters of shared legislative interest between the center and provinces. अब जो CCI है, that is mandated by Article
153 of the Constitution of Pakistan, and the CCI is a forum जो constitutional body है, Council of Common Interest. इस पे common interest का मतलब ये है कि जो सूबों के आपस में common interest है, कुछ तो काम ऐसे ना जो हर सूबे के अपने अपने हैं, कुछ सूबों के common interest हैं, तो उन common interest की जो settlement, dispute resolution की जो body है, platform है, that is the Council of Common Interest. ठीक. अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये सारे जो फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन वाले काम है या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम है, वो सबसे अहम काम है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, जिसमें माजी में 7th एनएफसी से पहले, जिस तरह हमने अभी पॉइंट भी लिखा था एनएफसी को डिस्कस करते हुए, कि डिस्प्यूट्स होते थे सूबों के दरमियान, तो वो हर सूबा अपने रिजर्वेशंस लेके, अपने ग्रीवेंसेस लेके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को रेफर करता था और वहां पे फैसले होते थे. काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की आप आर्टिकल 153 देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें उसकी कॉम्पोजिशन लिखी हुई है कि उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे. तो एक तो ये था, और तो इसके अंदर एक पॉइंट ये था कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक बड़ा रोल कार्व आउट किया था 18वीं तरमीम ने, और उसकी स्ट्रेंथनिंग की बात की थी. Okay. Let's stop here on the 18th Amendment. अब हेडिंग अगले टॉपिक पे अब हम मूव करने लगे हैं, अभी तक नहीं किया था. वो है, लिखिए हेडिंग दीजिए, ब्यूरोक्रेसी को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिविल सर्विस रिफॉर्म. अब याद रखिए कि हमारे ये जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, फेडरल, प्रोविंसेस, लोकल, इस पे गवर्नेंस पार्टनर्स तो बहुत हैं, जो हम बार बार गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में पढ़ा. गवर्नेंस में रोल है इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी, एनजीओस का भी, इंटरनेशनल एनजीओस का भी, लोकल एनजीओस का भी, एकेडेमिया का, यूनिवर्सिटीज का, मीडिया का, गवर्नमेंट का अपना, थिंक टैंक्स का, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं इन दिस गवर्नेंस प्रोसेस. लेकिन जो मेन स्टे है ना गवर्नेंस का, वो है गवर्नमेंट. और जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के दो हिस्से हैं, एक इलेक्टेड और एक नॉन इलेक्टेड. जो हमारा नॉन इलेक्टेड वाला है ना, जिसको हम अक्सर ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, सिविल सर्विस भी कहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं रही. वो हमें नजर इस तरह से आता है कि आपको, अगर आप पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को देखें तो ऑल ऑफ देम आर लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, जिनमें सालों से गवर्नमेंट पैसा डाल रही है पर बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता. सिमिलरली आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को अलग रखते हैं, आप उन इदारों की बात करें जो सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं टू द पीपल, वहां पे प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, inefficiencies हैं, quality of the service that the government delivers is also very bad. आप सारे हॉस्पिटल्स की बात कर दें, स्कूल्स की बात कर दें, सारे सर्विस डिलीवरी इंस्टीट्यूशंस. और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कौन सी हैं, जैसे पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल्स, जिन सब की हम प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं. This raises serious questions about the quality of the service. Or for enhanced governance and service delivery,
it is important that the civil service of Pakistan be reformed. There are several reform ideas कि ऐसे रिफॉर्म कर लो, ऐसे रिफॉर्म कर लो, ऐसे रिफॉर्म कर लो, and this has been debated for a very very long time. अभी हमने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को जब समझ रहे थे तो हमने 1973 के सिविल सर्वेंट्स एक्ट की बात की थी. वो एक तरह से रिफॉर्म ऑफ द सिविल सर्विस था, क्योंकि उससे पहले जो सीएसपी एग्जिस्ट करता था उसके 12 टुकड़े करके 12 ग्रुप्स उसमें से निकाल दिए. लेकिन मसाइल क्या आए? वो 12 ग्रुप्स बनाए गए टू एंश्योर सम लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि हर स्टेट के हर बिजनेस को करने के लिए एक सेपरेट ग्रुप एग्जिस्ट करता हो. ये है स्पेशलाइजेशन. लेकिन उसका अगला स्टेप स्पेशलाइजेशन का ये था कि हर उस ग्रुप के लिए भी जो लोग चुने जाएं वो उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज या ट्रेनिंग या एजुकेशन उस ग्रुप का जो बिजनेस है वो वाली हो. फॉर इंस्टेंस उस ग्रुप ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप है तो उस ग्रुप का जो बिजनेस है वो है ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, बुक्स मेंटेन करना, रिकॉर्ड कीपिंग. तो उसमें कोई एमबीबीएस किया हुआ या इंजीनियरिंग किया हुआ नहीं जाना चाहिए था. लेकिन जब हमने ये सीएसएस का एक एग्जाम बनाया तो हमने 12 ग्रुप्स तो बना दिए लेकिन एग्जाम एक ही रहने दिया. वो एक जनरलाइज्ड एग्जाम था. उसकी वजह से सर्विस के अंदर स्पेशलाइजेशन एक तो सफर की. दूसरी सर्विस की बड़ी प्रॉब्लम, तो पहली प्रॉब्लम तो है जनरलाइजेशन. दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जिस वजह से गवर्नेंस सफर हुई वो थी ये जो हमारा कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर है. अब चूंकि सर्विस के अंदर हमने ये सर्विस को हमने पेंशनेबल सर्विस बनाया और साथ साथ सरकार ने बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो पर्क्स के अंदर दिया एज अपोज टू द सैलरी. तो डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट की किटी के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन तो वही है, लेकिन सिविल सर्वेंट्स को जो कैश की सूरत में पैसा डिसबर्स होता है टू मीट देयर रूटीन एक्सपेंडिचर्स, दैट सैलरी इज वेरी वेरी लो. तो जब हम उस सैलरी को बढ़ाने की बात करते हैं तो हमेशा एक बात ये आती है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है. मसला पैसे का नहीं है, मसला है द रिकन्फिगरेशन of how compensation or salary benefits have to be disbursed to the civil servants. उसकी एक अहम मिसाल ये है कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट्स और जगहों पे लोग सर्व करते हैं फील्ड में, उनको 20-20 कनाल के घर दिए हुए हैं, सैलरी उनकी 40,000 है. उनको 15-15 मुलाजिम दिए हुए हैं, हर मुलाजिम को गवर्नमेंट 20,000 पे कर रही है. 15 मुलाजिम का मतलब है कि आप 3 लाख रुपया तो उस बंदे के मुलाजिमों को दे रहे हो. जिस बंदे के मुलाजमों को आप 3 लाख दे रहे हो उसकी अपनी ग्रेड 17 की सैलरी 40,000 है. तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उस एक बंदे पे 10 से 15-20 लाख रुपया, दो उसको गाड़ियां दी हुई हैं, वो भी पर्क्स हैं. 15 लाख रुपए अगर गवर्नमेंट उस बंदे पे खर्च रही है तो गवर्नमेंट वो पैसा उसको कैश की फॉर्म में दे दे या उससे कम पैसा दे दे. मे बी यू सेव सम मनी. So at the end of the day, there needs to be a reconfiguration of how compensation or salary benefits have to be disbursed. आप फेडरल गवर्नमेंट में आते हैं, इस्लामाबाद में बड़ा शहर है, उस तरह के बड़े घर तो नहीं है, लेकिन हर सिविल सर्वेंट को हायरिंग के पैसे मिलते हैं. अब उस घर को हायर करने के, लेकिन वो हायरिंग के पैसे उसकी तनख्वाह में शामिल नहीं किए जाते. उसको कहा जाता है कि तुम एक घर रेंट पे लो, उस घर का जो मालिक मकान है उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी और अल्टीमेटली उस मालिक मकान के अकाउंट में एज रेंट पैसे जाएंगे. तो एक तरह से उसको हम हायरिंग बोलते हैं.
So some people live on hiring, और लोग चाहते हैं कि वो हायरिंग वाला पैसा आप हमें डायरेक्ट डिसबर्स कर दो, बट द गवर्नमेंट डजंट वांट टू डू दैट. तो ये जो लो सैलरीज हैं, दे आर अ ह्यूज सोर्स ऑफ डिस्करेजमेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स. देयर सैलरीज आर नॉट कंपेटिटिव. तीसरा ये सैलरी से रिलेटेड इशू जो है ना, वो है नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉम्पेंसेशन एंड सैलरीज बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. अब 18वीं तरमीम और एनएफसी के बाद जब सूबों के पास पैसा आया, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा अपने सिविल सर्वेंट्स को देना शुरू कर दिया, डिसबर्स करना शुरू कर दिया. उससे क्या हुआ कि ये एक नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई सैलरी में. अब 17वें ग्रेड का बंदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कुछ और सैलरी लेता है और फेडरल में कुछ और सैलरी लेता है. सेम गोज फॉर 18, 19, 20. So what are the reform ideas? Reform ideas क्या है? Problems तो बहुत हैं सिविल सर्विस के साथ. स्ट्रक्चरल इश्यूज अलग हैं, फंक्शनल इश्यूज अलग हैं. एक स्ट्रक्चरल इशू है प्रमोशन का. फिर दिस कंपटीशन विद इन ग्रुप्स इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. कुछ ग्रुप्स के अंदर प्रमोशन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, वहां प्रमोशन तेज होती है, कुछ ग्रुप्स में नहीं होती. तो ये कंपटीशन भी है. तो एक यूनिफॉर्म प्रमोशन पॉलिसी भी आपको चाहिए, वो भी एग्जिस्ट नहीं करती, व्हिच इज अ स्ट्रक्चरल इशू. और फंक्शनल इश्यूज जो है वो मैंने जिनका पहले 3-4 तस्करा किया. अब सिविल सर्विस के रिफॉर्म आइडियाज क्या हैं? पहला लिखिए, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको आप ब्रैकेट में लिखिए राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट. RIGHT वाला राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट. इस बात का मतलब यह है कि गवर्नमेंट में जितने एम्प्लॉइज आपको चाहिए उससे बहुत ज्यादा इस वक्त हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का पेंशन्स का बिल भी बहुत बढ़ा है. और गवर्नमेंट के अंदर अगर आपको 100 लोग चाहिए तो आपने 400 भर्ती किए हुए हैं. उसकी वजह से आप कभी भी एफिशिएंट गवर्नमेंट नहीं बन सकती. नंबर 2, जो मैक्स वेबर ने कहा था, टेक्निकल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जिसकी हम शुरू में बात भी कर रहे हैं कि टेक्निकल स्पेशलिस्ट हो गवर्नमेंट में, जिनको अपनी फील्ड का काम आता हो. अगर आप फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव IR या स्ट्रेटेजिक स्टडीज की कोई आपके पास एजुकेशन हो तो आप फॉरेन सर्विस में जाएं. अगर आप पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपके पास, आपने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी हो या लॉ पढ़ा हो तो आप पुलिस सर्विस में जाएं. टेक्निकल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. तीसरा लिखिए पॉइंट. अब ये सारे पॉइंट अगर सिविल सर्विस रिफॉर्म पे सवाल आता है तो हेडिंग्स बनेंगे.
तीसरा पॉइंट है a clearly delineated promotional structure for all service groups. Developed on the principles of efficiency and equity. बराबरी के उसूलों के ऊपर ये कायम होना चाहिए ताकि रिजेंटमेंट्स ना रहे किसी भी ग्रुप में और आपस में compete ना करें वो. On the principles of efficiency and equity. जी. प्रमोशन पॉलिसी की बात हो गई. आगे लिखिए डेवलपमेंट ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल. Development of key performance indicators for performance appraisal. इसके नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए promotions and salary increases should be linked to performance. ब्रैकेट में लिख दीजिए. should be linked to performance. Should be linked to performance. By the way, while teaching this class, I just saw one of you shared the World Times magazine for the month of July in the group. So I just opened the magazine अभी class पढ़ाते हुए तो उन्होंने मेरा एक piece publish किया हुआ है called titled The Post Corona World. So it's a good piece for I am recommending my piece for people who are students of IR and current affairs. Current affairs तो खैर सब पढ़ रहे हैं लेकिन जिन्होंने particularly IR रखी है तो कोविड का IR foreign relations, international politics के ऊपर क्या impact होगा, it's based on that. Anyways, okay. Thank you, Abdul Lazim Shah sir. बहुत शुक्रिया. Okay, so moving on. तो KPIs का मतलब होता है कि आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बता दें कि हर नौकरी के साथ, हर जॉब के साथ इंडिकेटर्स हों
कि इस नौकरी पे जो भी बंदा इस सीट पे बैठेगा उसने 2 साल 3 साल 4 साल इतना अरसा भी वो इस सीट के ऊपर है, उसने ये 4 या 5 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, परसेंटेज क्वांटिफाइबल इंडिकेटर्स, जो वो अचीव करनी है चीजें, 4 या 5, जिनको आप केपीआईज बोलते हैं। ठीक, अगर वो बंदा वो अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है, अब सरकार के अंदर कोई केपीआईज या टारगेट्स नहीं होते, अगर होंगे तो सिस्टम में ज्यादा एफिशिएंसी होगी। तो अगर आप अपने केपीआईज अचीव कर पाते हो तो ओनली देन यू वुड बी गेटिंग प्रमोशंस, और ओनली देन यू वुड बी गेटिंग सैलरी रेसेस। अभी क्या होता है कि एक फिक्स टेन्योर है, और उस फिक्स टेन्योर के बाद, अच्छा जी 17वें में हो तो पूरे बैच ने जी इकट्ठा 18वें में प्रमोट हो जाना है। वो पूरा बैच है जी, अच्छा जी 40th कॉमन का बैच है, वो सारे ग्रेड 18 में जाएंगे इकट्ठे। ठीक है, तो 5 साल हो गए सर्विस में, 5 साल बाद रूल्स कहते हैं आप ग्रेड 18 में चले जाओगे, 18 के 5 साल बाद आप 7 साल बाद आप 19 में चले जाओगे। तो जब आपको सर्विस में आए हुए 12 साल होते हैं, सिविल अगर आपने सीएसएस कर दिया है, तो आप ग्रेड 19 में प्रमोट हो जाते हो। क्यों भाई? और सारा बैच हो जाता है। क्यों होता है भाई? उनमें से बहुत सारे लोग स्लैकर्स हैं जिनकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, उनको प्रमोशंस क्यों मिल रही हैं? तो इसे कहते हैं प्रोटेक्शन बाय टेन्योर। और ये प्रोटेक्शन बाय टेन्योर जो है, इसको भी एबॉलिश करने की जरूरत है कि आपकी प्रमोशंस जो हैं वो भी टेन्योर बेस्ड हैं, और आपको एक प्रोटेक्शन मिल गई है बिकॉज यू गॉट अ टेन्योर्ड पोजीशन। तो इस आखिरी पॉइंट यही लिखी है कि एबॉलिशमेंट ऑफ टेन्योर, और इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि आपकी ये जो टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट्स और उसके बाद प्रमोशंस जो हैं, these must not be protected, these must be abolished, क्योंकि इनकी वजह से सिविल सर्वेंट्स डू नॉट परफॉर्म, क्योंकि उन्हें पता है परफॉर्म करेंगे तब भी प्रमोशन मिल जाएगी, नहीं करेंगे तब भी प्रमोशन मिल जाएगी। अच्छा, एक और रिफॉर्म आइडिया लिखिए कि द सिस्टम मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी एंड नॉट प्रेजेंस। अभी जो करंट सरकारी सिस्टम है वो ये है कि आप if you are present in the meetings, if you go to office every day, sit there for 5-6 hours, do not do anything, क्योंकि आपके पास कोई KPIs तो है नहीं जो आपके काम को या परफॉर्मेंस को असेस करें। आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे काम करके उठ के आ जाएं तो तब भी you're doing really well. So the system has to be moved towards productivity and not presence. अगला पॉइंट लिख लीजिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया, जिसको हमने टेक्निकल और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट द रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एक एग्जाम के ऊपर बेस्ड नहीं करना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन स्किल सेट एंड कॉम्पिटेंसीज। सो कॉम्पिटेंसी एंड स्किल सेट बेस्ड रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया, जो कि अभी नहीं है। और लास्ट बात देखिए, जो आपकी कॉमन ट्रेनिंग या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है उसको भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो उस पे हम पॉइंट लिखते हैं कि ट्रेनिंग्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स मस्ट बी, ये सारे रिफॉर्म आइडियाज हैं। अगर सिविल सर्विस रिफॉर्म पे कोई, मैंने 8-10 आपको हेडिंग्स लिखवा दी हैं जिसपे आप पूरा 20 मार्क का सवाल बना सकते हैं। शुरू में 3-4 प्रॉब्लम्स बता दें इस ब्यूरोक्रेसी की और सिविल सर्विस की प्रॉब्लम्स मल्टीफोल्ड है। करप्शन भी है, डिस्करेज्ड सिविल सर्विस, लो प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी नहीं है। मैंने शुरू में खाली एफिशिएंसी लिखवाया था, आप चाहें तो प्रॉब्लम्स जब आप शुरू में लिखी थी रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, उसमें मैंने करप्शन और इंटेग्रिटी के जो पाकिस्तान में मल्टीपल सिविल सर्विस के ऊपर केसेस है, वो ये चीजें मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा कि आप सबको पाकिस्तान अफेयर्स में भी ये चीज इतनी डिस्कस होती है, पता ही है सबको कि हमारे गवर्नेंस इश्यूज क्या हैं और सिविल सर्विस की प्रॉब्लम्स क्या है। असल बात है कि सिविल सर्विस रिफॉर्म भी अब ऐसे का भी इतना घिसा पिटा टॉपिक बन चुका है, और हर साल ही इस पे कोई एक आधा ऐसे आया होता है,
और साथ पाकिस्तान अफेयर्स का भी इतना घिसा पिटा टॉपिक है कि मैं जीपीपी की क्लास में इस पे इतना टाइम नहीं स्पेंड यूजली करता। मैं आधा पौना घंटा ही स्पेंड करता हूँ जितना मैंने आज किया। एबॉलिशमेंट ऑफ टेन्योर मैंने समझा दिया ना शेरशाह साहब, आई होप आपको समझ आ गया, मैंने वो तफसील से समझाया। अच्छा, उसके बाद तो ये कॉम्पिटेंसी, तो अगला रिफॉर्म आइडिया जो मैं हम डिस्कस कर रहे थे वो था कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और आखिरी है कि ट्रेनिंग्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स must be more oriented to the job इसके आगे कॉलन डाल के लिख दीजिए, ऑन द जॉब प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, क्योंकि आप नौकरी ज्वाइन कर चुके होते हैं, सो इट्स एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड नॉट एकेडमिक स्टाइल ट्रेनिंग, जिस तरह यूनिवर्सिटीज में होती है ना। अभी हमारी जो कॉमन ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, इट्स वेरी एकेडमिक इन नेचर, तो हमें उसको ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग बनाना है। ऑन द जॉब प्रोफेशनल ट्रेनिंग as opposed to academic style training. Yeah, like more pragmatic, more practical, जिसमें you are exposed to actual on the job situations as opposed to sitting in a classroom with the teacher teaching you out of a certain textbook. क्योंकि CSS उन लोगों ने किया है जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका क्राइटेरिया है। तो आप मेजॉरिटी ट्रेनिंग्स जो है वो रिपेटिटिव हैं, they just keep teaching you the things that you've already learned in school. तो आपको they have to move one step ahead. जैसे फॉर इंस्टेंस आप आज कोक या पेप्सी में MTO बनते हैं, तो वो 6 महीने की आपको वो भी ट्रेनिंग कराते हैं। वो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री लेवल पोजीशन है, जिस तरह बिल्कुल वैसी जैसे ग्रेड 17 CSS पब्लिक सेक्टर की एंट्री लेवल पोजीशन है। अगर आप दोनों का मुआवजा कंपैरिजन करें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि वहां पे ट्रेनिंग्स ना बहुत ऑन द जॉब है, जिसमें आपको वो कॉम्पिटेंसी और स्किल सेट डेवलप करते हैं एज अपोज टू आपको बुकिश नॉलेज प्रोवाइड करें। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी और स्किल सेट नहीं डेवलप किया जाता। अब बहुत सालों से इसके ऊपर बहस है कि हमारी ट्रेनिंग्स को रिफॉर्म कैसे किया जाए, जो सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग्स हैं, CTP, STP। तो ये एक इट्स एन ऑनगोइंग डिबेट। मैं बल्कि आपको मजे की अभी ये सिविल सर्विस रिफॉर्म बस इतना ही था, ये 8 या 9 पॉइंट्स थे। एक के बारे में अगर आप 4-4, 5-5 लाइंस जो मैंने बोली हैं, यू जस्ट एबल टू एक्सपैंड ऑन दिस, तो आपका एक पूरा 20 नंबर का आंसर बनता है। प्रॉब्लम्स लिख दीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन दीजिए। आपको एक मजे की बात बताऊं, अच्छा इसमें आखिरी बात, NCGR है जो आप ये जो गवर्नेंस पॉलिसी वाला ग्रुप है, इसमें NCGR का वॉल्यूम 1 पड़ा हुआ है। उसके नीचे वाली साइड पे ना जो रिफॉर्म के आइडियाज हैं, वो NCGR को एक दफा आप तफसील से पढ़ भी लीजिए, तो आपको थोड़ी सी बातें उसमें समझ भी आ जाएंगी। उसमें इन्होंने नई सर्विस ग्रुप्स बनाने की बात की भी है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। दैट यू डू नॉट नीड टू रीड, लेकिन उसके नीचे ना अंडरलाइन करके उन्होंने फिर पैराग्राफ्स में पॉइंट्स बनाए हैं कि रिफॉर्म्स क्या क्या होंगे, प्रमोशन पॉलिसी, दिस दैट। वो पॉइंट्स भी एक दफा पढ़ लीजिए, उससे आपको समझ आ जाएगी कि जो करंट इशरत हुसैन साहब की लेड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टास्क फोर्स है, जिसको बाजी में NCGR बोला जाता था, नेशनल कमीशन ऑन गवर्नेंस रिफॉर्म्स, नेशनल कमीशन ऑन गवर्नेंस रिफॉर्म्स, उसके भी हेड इशरत साहब कह रहे थे। इस गवर्नमेंट ने भी, वो मुशर्रफ दौर की बात है, इनको भी इस गवर्नमेंट ने भी इशरत साहब को रख लिया। तो ये इशरत साहब के प्रपोजल्स मोर और लेस वही हैं। अभी जो इस गवर्नमेंट में वो काम कर रहे हैं उसकी कोई रिपोर्ट सामने तो नहीं आई, लेकिन मुशर्रफ दौर में जो उन्होंने काम किया था उसकी जो NCGR जो रिपोर्ट थी वो चूंकि पब्लिश हुई थी, तो ये वो रिपोर्ट है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं हुई। ठीक, तो NCGR को भी एक दफा देख लीजिए, उसमें से भी आपको सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की कुछ पॉइंट्स इशरत साहब की वर्ड्स में भी आपको मिल जाएंगे। इनमें से कुछ पॉइंट्स इशरत साहब से मिलते जुलते ही हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, कुछ पॉइंट्स वो हैं जो मेरे अपने रिफॉर्म प्रपोजल्स हैं। मैं जब अपनी कॉमन ट्रेनिंग कर रहा था तो उस वक्त आई वाज पार्ट ऑफ अ कमेटी
जो उस वक्त के डायरेक्टर सीटीपी ने बनाई, जिसपे उन्होंने प्रोबेशनर से, जो हम लोग प्रोबेशन पे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको उस कमेटी का हिस्सा बनाया। जब हमारी ट्रेनिंग को स्टार्ट हुए 4 महीने हो चुके थे, उन्होंने कहा कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, टोटल 6 महीने की कॉमन ट्रेनिंग होती है, तो जब 4 महीने हो जाते हैं तो यू आर बेसिकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लास्ट लेग ऑफ योर ट्रेनिंग. So they wanted us to give, based on our first 4 months and our experience with the training, they wanted us to give recommendations के ट्रेनिंग को कैसे ज्यादा मौसर इफेक्टिव बनाया जा सकता है. तो वो हमने उस वक्त प्रपोजल्स किए थे. तो उनके ऊपर भी कुछ खास इम्प्लीमेंटेशन हुई. छोटे छोटे चेंजेस उन्होंने जरूर किए ट्रेनिंग के अंदर कि अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, कितने बजे क्लास हो, कितने बजे ना हो, इस तरह के चेंजेस जरूर हुए. लेकिन ओवरऑल द आउटलुक ऑफ द ट्रेनिंग रिमेन्ड द सेम. अब आपको पता है कि मैक्स वेबर ने भी ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेट्स की बात की थी. उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेट की बात की थी. तो ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेट का मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग होल्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. तो अगर ट्रेनिंग इफेक्टिव है तो वो ऑलरेडी इक्विप्ड होंगे फॉर द सर्विस. तो इसलिए चूंकि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, तो इसलिए ट्रेनिंग के ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विस रिफॉर्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा ये है कि ट्रेनिंग का रिफॉर्म हो. दैट हाउ सिविल सर्वेंट्स आर ट्रेन्ड शुड आल्सो बी रिफॉर्म्ड. और ये जो करप्शन वाला एक और इंटेग्रिटी के इश्यूज हैं सिविल सर्वेंट्स के साथ, दैट इज स्ट्रांगली लिंक्ड विद कॉम्पेंसेशन और सैलरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये जो सारी शुरू में हमने प्रॉब्लम्स 5-6 आइडेंटिफाई की, ये जो 7-8 अब हमने लिखे हैं पॉइंट्स, ऑल ऑफ दीज आर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स दैट द सिविल सर्विस करंटली हैज. तो ये है सिविल सर्विस रिफॉर्म का टॉपिक. नेक्स्ट सेशन जब हम अपना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे ये जो आज हमने गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखा और सिविल सर्विस की बात की, इसके अंदर जब हम सिविल सर्विस की बात करते हैं और ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, तो ये आपकी मल्टी लेवल गवर्नेंस तो है, लेकिन हर लेवल पे इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं. और जब हम इंस्टीट्यूशंस को समझेंगे तो उन इंस्टीट्यूशंस के साथ ब्यूरोक्रेसी का, सिविल सर्विस का इंटरेक्शन क्या है, किस इंस्टीट्यूशन को ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट्स चला रहे हैं, किसको जुडिशियल सर्विस के लोग चला रहे हैं, किसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, तो वो चीज अब हमें थोड़ी सी बेहतर समझ आएगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन. तो नेक्स्ट सेशन को हम वहां से स्टार्ट करेंगे. और एक बात याद रखिए कि एक हमारा टॉपिक अभी रहता है अकाउंटेबिलिटी का. अब जब सिविल सर्विस के रिफॉर्म की बात है ना, तो उसमें एक बेशक इसको ऐड कर लीजिए, जब करप्शन इंटेग्रिटी की बात होती है कि सिविल सर्विस में बहुत बड़ा इशू है करप्शन का, इंटेग्रिटी का, एम्बेजलमेंट ऑफ स्टेट और पब्लिक फंड्स, इनके इश्यूज हैं. तो उनके खात्मे के लिए सैलरी तो एक एनहांस्ड इंक्रीज्ड सैलरी और मार्केट कंपेटिटिव सैलरी जिसको कहते हैं, वो तो एक सोल्यूशन है. लेकिन एक सोल्यूशन साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी है, बहुत बड़ा सोल्यूशन. तो आज नेक्स्ट सेशन में हम शुरू में इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नेंस पे, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल. और सेकंड पार्ट ऑफ द क्लास वुड बी अबाउट अकाउंटेबिलिटी. तो अगला लेक्चर उसके ऊपर करेंगे, अकाउंटेबिलिटी खत्म करेंगे. और आखिरी 2 लेक्चर जो है हमारे, एक होगा प्लानिंग के ऊपर, और प्लानिंग पूरा हम पाकिस्तान का प्लानिंग प्रोसेस करेंगे. और लास्ट हमारा लेक्चर होगा अबाउट थेरीज में हमेशा सबसे एंड पे कराता हूँ, जिसमें ये लिबरलिज्म, डीसेंटर्ड थ्योरी, मार्क्सिज्म, रेगुलेशंस थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आपके सिलेबस में है. अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि आज हमने लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर बात की, तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं दुनिया में जो लोकल डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, लोकल डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट मॉडल्स हैं. तो उन डेवलपमेंट के मॉडल्स को भी डिस्कस करना अहम है, जरूरी है. उनमें से एक मॉडल है केरला मॉडल, जो इंडिया की स्टेट केरला बहुत तेजी से डेवलप हुई थी, इकोनॉमिकली डेवलप बहुत तेजी से हुई थी. हेल्थ अच्छी हो गई उनकी, एजुकेशन अच्छी हो गई, पॉवर्टी एलिविएशन हुई, वहां से गुर्बत खत्म हुई. तो उसका मॉडल हमारे सिलेबस में नाम के साथ केरला को शामिल किया गया. ठीक है. तो चूंकि वो लोकल डेवलपमेंट का मॉडल था, तो केरला में क्या हुआ था कि पावर्स उन्होंने डिवॉल्व कर दी थी स्टेट
स्टेट ऑफ केरला ने पावर्स डिवॉल्व कर दी थी लोकल गवर्नमेंट्स को और उनको स्ट्रेंथन और एम्पावर किया था। तो केरला मॉडल को 18th अमेंडमेंट और चूंकि उसमें डेवोल्यूशन और फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन थी, तो उसको 18वीं तरमीम के साथ भी पढ़ा जा सकता है या केरला मॉडल अलग से भी किया जा सकता है। तो उसको हम चाहें तो हम अगला लेक्चर में जो गवर्नेंस की हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें उन्हीं के साथ हम केरला मॉडल को कर लेंगे, या फिर हम उसको जो हमारा प्लानिंग वाला है लेक्चर उसके साथ केरला मॉडल को कर लेंगे। तो बेसिकली जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं वो ये गवर्नेंस का इंस्टीट्यूशन है एक, अकाउंटेबिलिटी है दो, केरला मॉडल है तीन, प्लानिंग है चार, प्लानिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान, और उसके अंदर ही आपका प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग कमीशन के ऊपर जो सारा टॉपिक है वो भी आ जाता है। तो प्लानिंग प्रोसेस इज फोर्थ और थेरीज इज फिफ्थ। थेरीज को पूरा एक लेक्चर चाहिए होता है, इनमें 6-7 थेरीज हैं। प्लानिंग प्रोसेस को भी तकरीबन पूरा एक लेक्चर चाहिए, तो उसी लेक्चर में हम 15-20 मिनट एंड पे केरला मॉडल के ऊपर लगा लेंगे। तो ये लास्ट 2 लेक्चर हो जाएंगे और आज नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट हाफ के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस कर लेंगे, गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, पूरा आपका गवर्नेंस पाकिस्तान का जो आपका फ्रेमवर्क है, पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, एग्जीक्यूटिव के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे और लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ही हम सेकंड हाफ में नेक्स्ट लेक्चर की अकाउंटेबिलिटी करेंगे। तो इस तरह होपफुली मेरी उम्मीद ये है कि आज अगर हमारा 5वां लेक्चर था या चौथा था, 5वां था आई थिंक, तो अगर 5वां था तो या चौथा था जो भी, तो 5th था, तो वी वुड नीड 3 more lectures to finish this। ठीक है, ठीक है जी। हर्डल्स बहुत हैं जी, हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं, हर्डल्स बहुत हैं, लेकिन मेजर हर्डल है जो आपकी लीगल हर्डल्स हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस, पीपल जो भी रिफॉर्म्स में डिस्टर्ब होंगे ना, अपने स्टेटस को जब डिस्टर्ब होगा, एवरीथिंग इन द गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ एंड प्रोटेक्टेड बाय सर्टेन रूल्स। जब तक आप उन रूल्स को बेंड नहीं करोगे तो रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ा तो हर्डल है लीगल हर्डल, जो इशरत साहब फेस करते हैं। ठीक, और कवानीन को चेंज करना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल, और दूसरा सबसे बड़ा हर्डल है वेस्टेड इंटरेस्ट। अब कई ग्रुप्स चाहते ही नहीं है कि स्टेटस को चेंज हो, बिकॉज दे आर विनर्स इन द सिस्टम। और स्टेटस को में जो लोग विनिंग पोजीशन के अंदर है ना, in a position of advantage, they have become very very strong, some of them are stronger than the system। ठीक, तो तब दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है वेस्टेड इंटरेस्ट। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि the system is very very complex, there are so many interacting forces and so many players in this huge system of the government and the bureaucracy that, you know, one set of reforms, any set of reforms for that matter, cannot be comprehensive and complete enough to change the complexion and, you know, of the entire bureaucracy। तो इस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का सेट है, सिस्टम है ये ब्यूरोक्रेसी, और किसी एक, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज अ रिफॉर्म प्लान जिसके थ्रू इस ब्यूरोक्रेसी को बदला जा सके। तो ये भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, आप एक चीज को बदलते हो तो तीन, एक चीज को पॉजिटिव तरीके से बदलते हो, तीन ऑटोमेटिकली खुद ही खराब हो जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा इंटरैक्टिंग फोर्सेस हैं, इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं सिस्टम के अंदर। राइट, प्लीज मेंशन व्हाट। ओके, चले, यू गॉट इट, ठीक।